जी अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. I am Ramsha Javed, a final year MBBS student and part of National Cabinet Sync. I am your host for today's Management Sciences online guidance session. Starting a session with the holy name of Allah, I'd like to invite Hafiz Umar Usman from FMDC. अस्सलाम वालेकुम. आवाज आ रही है मेरी? जी जी. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील. अलम यजअल कैदहुम फी तज़लीलिन व अरसल अलैहिम तैरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जीलिन फजअलहुम कअस्फिन माकूल. सदक़ल्लाहुल अज़ीम. Thank you. Jazakallah Umar. I welcome you all to today's session. First of all, we are really very grateful to all our audience who are watching us, to all those who have joined us through Zoom today, and of course, our speakers for today. One by one, I'll ask you all to please introduce yourself, starting from my co-host, Waleed Inayat. Assalamu alaikum. My name is Waleed Inayat, and I am a final year medical student at Rawalpindi Medical University, and I'll be co-hosting Ramsha today, representing Sync Pakistan, inshallah. Thank you, Waleed. Atir and Mahnoor from LUMS. Assalamu alaikum ji. I am MGS junior at LUMS, and I am currently a member of Sync. Over to Bajwa. Assalamu alaikum everyone. I'm Mahnoor Bajwa. I am a student of LUMS. I just entered into my junior year and I'm also a member of Sync, and I'm really looking forward to it. Thank you, Mahnoor. Mariam Shabir from LSE. Ji Mariam, introduce yourself. Mariam, can you kindly unmute your mic? Assalamu alaikum everyone. My name is Mariam Shabir. I'm doing my double majors in marketing and finance from Lahore School of Economics, and I'm also in my junior year. I'm looking forward to guide you all and give you some useful tips ahead to get into Lahore School of Economics and make the most out of it. Thank you so much, Mariam. Misam Zaidi and Hafsa Mahmood from IBA. Assalamu alaikum. This is Misam Zaidi. I am currently an undergrad student at IBA. I'm in my sophomore year. Assalamu alaikum. Hello. Misam, do you want to continue? No, you can continue. Okay. Assalamu alaikum. My name is Hafsa Mahmood, and I'm a BBA graduate from IBA. I have majored in the field of marketing and looking forward to guide you all today. Thank you so much, all of you, and for your time. And we are really very hopeful to work with you in future too. Sabse pehle, starting from the introduction of Sync, what is Sync? Sync is the abbreviation of Solidarity Among Young Nation for Change. Sync की foundations जो थी वो lay down की गई थी back in 2015 by our chairman Sir Tajammul Hussain and managing director and founder president Ali Hassan Malik, who is currently a final year student from Rawalpindi Medical College. सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि in which perspective we work, Sync है क्या और वो किस चीज में काम करते हैं. Sync actually एक organization है जो शुरू में medical student based थी, जो हम लोग 4 different domains में work करते थे, जिसमें health थी number 1 पे, number 2 education, number 3 पे social welfare and number 4 पे medical research. Continuing the projects over these last 5 years, हम लोगों ने बहुत ज़्यादा मतलब progress किया है in this organization, और हमारा जो main focus है, जो main aim है, वो है to spread awareness especially to those people जो अभी जिनके पास ये resources नहीं है, जो इतने privilege नहीं है
कि वो मतलब घर बैठ के ये चीजें जिनको मतलब मिल सके। मैं स्पेशली यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगी कि ये ऑनलाइन सेशन या गाइडेंस सेशंस उन लोगों के लिए हम लोग करवाते हैं जो कि रिमोट एरिया से हैं, जो रूरल एरिया से हैं, जिनको वी नो कि हम लोग, हमारे पाकिस्तान में इतना ज्यादा टैलेंट है माशाल्लाह, हमारे पाकिस्तानीज ही हैं फ्रॉम रिमोट एरियाज और रूरल एरियाज ही एक्सेल करते हुए कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं। तो आज हम लोग उन्हीं लोगों की गाइडेंस पे उन्हीं लोगों की गाइडेंस के लिए, और स्पेशली उन लोगों के लिए जो इंटरमीडिएट या फिर मैट्रिक लेवल या ओ या ए लेवल्स पे के ईयर्स में हैं, और उनको आगे अपने मतलब करियर के हवाले से, अपने प्रोफेशन चूज करने के हवाले से, अपने सब्जेक्ट चूज करने के हवाले से हम उनको गाइड करेंगे। एंड मतलब अगर इस चीज में दे कैन नॉट गेट इनटू दिस, दे कैन नॉट अचीव दिस, तो उस हवाले, उसके बाद आपके पास और कौन सी ऑप्शंस हैं जिनमें आप लोग जो है वो आगे जा सकते हैं, उस हवाले से हम लोग बात करेंगे। स्पीकर्स का हमने इंट्रोडक्शन दे दिया है, and secondly I am also thankful to our education department, Sync education department, who gave this opportunity to all of us today कि हम लोग एक प्लेटफॉर्म पे जो है वो Sync प्लेटफॉर्म पे जो है बैठ के लोगों को गाइड कर सकें। इससे पहले भी हमारे कुछ सेशंस हुए हैं, प्री इंजीनियरिंग का सेशन हुआ है, एमकैट के लास्ट ईयर में सेशन होते रहे हैं, सीएसएस का सेशन होता रहा है। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू पोस्ट ग्रेजुएशन एंड स्पेशलाइजेशन सेशंस, एंड आज टुडे जो है वो हम लोग मैनेजमेंट साइंसेस के सेशन पे जो है वो आगे प्रोसीड करेंगे। वन थिंग आई लाइक टू मेंशन हियर कि चूंकि हमारी ऑडियंस इस वक्त ज्यादातर वो होगी या है जो मतलब अभी अपने एडमिशन के सीरीज में है, या वो अपने इस वक्त यूनिवर्सिटी ईयर्स में, स्ट्रगलिंग ईयर्स में है, या फिर ओ ए लेवल्स के ईयर्स में है, तो मैं एक चीज अपने हवाले से ये जरूर मेंशन करना चाहूंगी कि नो मैटर विच स्टेज ऑफ लाइफ यू आर एट, मतलब आप लोगों ने अपनी राइट इंटेंशंस विद फेथ को कभी नहीं छोड़ना। दीज टू थिंग्स कि आपने एक चीज अचीव करनी है, उसको एक अपनी नेक नियति के साथ आगे लेके चलना है, और उस चीज पे फिर यकीन रखना है कि यस आई कैन डू दिस। सेटबैक्स होते रहते हैं लाइफ में, लाइफ जस्ट थ्रोज यू डाउन, आपको एक दफा ऊंचाई पे ले जाके भी नीचे गिरा सकती है, लेकिन यू आर नेवर गिविंग अप। दिस इज व्हाट वी आर हियर फॉर, दिस इज हाउ वी शुड लिव अ लाइफ। जब आप ये चीजें अपने साथ लेके चलते रहेंगे ना कि ठीक है मैं चलता जा रहा हूँ, वी नो वी आर ह्यूमंस, और हम लोग जो हैं वो वी गेट टायर्ड एट टाइम्स एंड हम थक जाते हैं। मतलब इंसान है, थक जाता है कि यार अब क्या मुझे मिल ही नहीं रहा। फॉर एग्जांपल जो गैप ईयर में होंगे अभी बच्चे, जो स्टूडेंट्स होंगे, वो कह रहे होंगे यार मैंने पिछले साल मेहनत की थी, मुझे क्यों नहीं मिला। तो आपने गिव अप नहीं करना, आपकी टाइमिंग पे आपको उससे भी बेहतर चीज मिल जानी है। एंड व्हाट मोर पीसफुल, मतलब इससे ज्यादा पीस की बात क्या है, कि सुकून की बात क्या है, कि जो हो रहा है वो आपकी बेहतरी के लिए हो रहा है। आपका एडमिशन नहीं हुआ, उसमें आपकी बेहतरी है। आपको ये चीज ग्रेड नहीं मिला, उसमें आपकी बेहतरी है। आप लोगों ने कभी भी इन चीजों से लाइफ को एक फेलियर के तौर पे एक्सेप्ट नहीं करना। लाइफ इज अ सक्सेस अंटिल यू मेक वन, इंशाल्लाह। नाउ कमिंग टू आवर स्पीकर्स, सबसे पहले आई विल आस्क आतिर अतीक फ्रॉम लम्स कि आप अपने एक्सपीरियंस शेयर करें, आप गाइड करें जो स्टूडेंट्स इस वक्त हमें देख रहे हैं, जो लोग हमें इस वक्त देख रहे हैं, कि उनको एडमिशन के हवाले से या उनको अपनी आप अपने एक्सपीरियंस से जितना भी मतलब जो कर सकते हैं एक्सप्लेन वो करें। जी आते। थैंक यू रमशा। सबसे पहले मैं अपनी डिस्कशन का आगाज इस बात से करूंगा कि पाकिस्तान में मोस्टली हाउस होल्ड्स में दो प्रोफेशंस को प्रेफर किया जाता है, इंजीनियरिंग और डॉक्टर बनना, MBBS। तो सबसे पहले तो ये है कि आप ये ना समझें कि अगर आपका मतलब फॉर एग्जांपल फॉर पेरेंट्स, और या आप अगर आप बड़े बहन भाई हैं, या यू योरसेल्फ अगर आप स्टूडेंट हैं, तो अगर आप लाइक हैं तो आप ये समझें कि भाई लाइक लोगों के सिर्फ दो प्रोफेशन होते हैं, डॉक्टर बनना या इंजीनियर बनना। तो सबसे पहले तो ये स्टिग्मा हटाने की बात है, क्योंकि एट टाइम्स आप जब इन चीज़ों में लगे होते हैं एंड यू आर गिविंग देम लीस्ट प्रेफरेंस, तो फिर ये होता है कि आपके पास जो ये ऑप्शंस हैं, जो आपके नंबर ऑफ प्रोफेशंस हैं आज के दौर में आपके पास, आप उनसे भी आपका देयर इज अ ग्रेट चांस कि आप उनमें भी पीछे रह सकते हैं, अगर आप उनको इन आइडियोलॉजी से लेके चलें कि भाई कि अच्छा ये नहीं, चलो कुछ भी ना हुआ तो हम विल कीप इट एज द लास्ट ऑप्शन। तो सबसे पहली बात तो ये है कि साइमल्टेनियसली आप रखें। ऑब्वियसली मैं ये नहीं कह रहा कि आप बिल्कुल ही वो ना करें। अब फॉर एग्जांपल अगर आपने MBBS करना है तो डोंट थिंक इट कि आपका अगर एडमिशन नहीं ही होगा तो देन यू विल अप्लाई फॉर एनी अदर यूनिवर्सिटीज, LAMS, LSE, IBA और एनी अदर यूनिवर्सिटी। द थिंग इज कि अब मैंने इस तरह के लोग देखे हैं जो साइमल्टेनियसली ये चीजें कर रहे होते हैं, साइमल्टेनियस बैकअप प्लान्स होते हैं। ये नहीं होती कि वंस यू फॉल बैक और फिर आप वो डिसाइड करें, क्योंकि इन दैट केस आपका लॉस ज्यादा हो सकता है। तो पहली बात तो मैं ये करना चाह रहा था। सेकेंड बात मैं करूंगा
कि आपकी एमजीएस की डिग्री है क्या एग्जैक्टली। सो एमजीएस की डिग्री एक स्टैंडर्ड बिजनेस डिग्री से इस तरह मुख्तलिफ होती है कि आपको बहुत ज़्यादा डाइवर्स नॉलेज मिलती है। यहाँ पे here at LAMS and I believe in other universities as well कि you get a variety of courses and you get options as well, choices, आपकी अपनी मर्जी की choices होती हैं जिनमें से आपने choose करना होता है जो आपको बहुत ज़्यादा help out करती हैं। For example, if I am a business student at LAMS, मैंने CS के courses भी लिए हैं, मैंने maths के courses भी लिए हैं, और even if I want मैं law के courses भी ले सकता हूँ। तो एक diverse personality आपको चाहिए होती है अगर आपने manage करना है obviously। तो अगर आप इफ यू थिंक कि आप अपने आप को एक बारी मैनेजमेंट की पोजीशन में डाल के देखें, अब थिंक ऑफ योरसेल्फ, अगर आप एस्पायर करें कि भाई कल को आप एक कंपनी के हेड लग जाते हैं, आप सीईओ लग जाते हैं, तो आपने सिर्फ बिजनेस साइड को नहीं देखना, आपने लीगल साइड को भी देखना है, आपने लीगल टीम को भी लीड करना है, आपने अपनी टेक्निकल साइड को भी लीड करना है, आपने प्रोडक्शन को भी लीड करना है। तो उस हिसाब से ये एक डाइवर्स डिग्री है जो आपके लिए बहुत ज्यादा मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करती है। तो उसके लिए आपको आई बिलीव के आपको इसमें आपको मार्केटिंग में भी, अगर आप मुस्तकबिल के हिसाब से बात करें कि क्या क्या ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं, तो उसमें आप देखें, आप मार्केटिंग में भी जा सकते हैं, आप एचआर में भी जा सकते हैं, आप अकाउंटिंग में भी जा सकते हैं। उसके अलावा LAMS के बच्चों की बहुत ज़्यादा तादाद है जो एंटरप्रेन्योर्स बनते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप में यहाँ पे इसलिए बहुत ज़्यादा लोग जाते हैं क्योंकि देखें आपके एंटरप्रेन्योर्स, यहाँ पे एक बड़ा एक ये भी परसेप्शन है कि भाई जिन्होंने कारोबार करना है तो वो बॉर्न बिजनेसमैन होते हैं, ठीक है, दे डोंट नीड टू स्टडी बिजनेस। एक ये परसेप्शन है। वो लोग हैं कि भाई जिनकी जनरेशन से बिजनेसेस चलते आ रहे हैं और वो वाली बात है। लेकिन एक आते हैं एंटरप्रेन्योर्स जो लोग रिस्क ले रहे हैं, नई चीज स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो उस केस में आप हर डिफरेंट चीज के लिए डिफरेंट बंदा नहीं लेते, यू नीड वन पर्सन हु कैन डू मल्टीपल थिंग्स। तो ये वो डिग्री है जो दैट कैन एनेबल यू कि आप बेसिक लेवल की सारी चीजें कर सकें। तो जी अब मैं आता हूँ अपनी नेक्स्ट बात की तरफ, वो है कि डिग्रीज अवेलेबल एट LAMS। तो जिस तरह यहाँ पे हैं 4 बेसिक स्कूल्स हैं LAMS के, सुलेमान दाऊद स्कूल ऑफ बिजनेस, SDSB विच इज बिजनेस स्कूल। फिर आता है आपका मुश्ताक अहमद गुरमानी स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज, और फिर आता है SSC सोशल साइंसेज का, सॉरी सोशल नहीं, साइंसेज का स्कूल है। फिर आता है आपका लॉ स्कूल। लॉ स्कूल इज एन इमर्जिंग स्कूल, उसका अभी पाकिस्तान में एक बहुत ज्यादा नाम बन रहा है लॉ के सर्कल के अंदर, लॉयर्स के सर्कल के अंदर, और वो भी एक 5 ईयर डिग्री प्रोग्राम होता है। तो SDSB की जहां हम बात कर रहे हैं, क्योंकि हम फोकस कर रहे हैं बिजनेस और MGS के ऊपर, तो SDSB का जहां तक ताल्लुक है वहां पे 2 डिग्रीज ऑफर होती हैं, मैनेजमेंट साइंस और ACF अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। अब अकाउंटिंग एंड फाइनेंस इज अ relatively specific degree for accounting and finance, लेकिन इसमें भी you get a lot of options to opt for different courses, different electives that make you, you know, a diverse student. तो उस हिसाब से, और मैनेजमेंट साइंस में डाटा एनालिटिक्स का ज़्यादा रोल आ जाता है, सिंपल बिजनेस के जो कोर्सेज होते हैं उनका रोल आ जाता है, इकोनॉमिक्स का रोल आ जाता है, मैथमेटिक्स का रोल आ जाता है, CS का रोल आ जाता है। तो एज आई मेंशन अर्लियर कि ये एक बड़ी डाइवर्स डिग्री बन जाती है। तो अब मैं आता हूँ एडमिशन प्रोसेस के ऊपर। तो एडमिशन प्रोसेस के लिए एक तो ये 3 वेबसाइट्स मेंशन्ड है, एक ही वेबसाइट मेंशन है, 3 डिफरेंट टैब्स, वो इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ से आपको इंफॉर्मेशन मिल सकती है। तो अब अगर हम बात करें एडमिशन प्रोसेस की, तो बहुत सारे लोग इसको लास्ट मोमेंट तक छोड़ देते हैं। आई बिलीव कि ये एक ऐसा प्रोसेस है, जब आपने किसी यूनिवर्सिटी में जाना है, विच शुड बिगिन 2-3 years earlier, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल आप किसी ऐसे एरिया से हैं या आप रिमोट एरिया से हैं और आप एस्पायर कर रहे हैं, यू आर ड्रीमिंग बिग। सबसे पहली बात तो ये है कि यू हैव टू ड्रीम बिग, यू हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ दैट यू कैन मेक इट टू दीज यूनिवर्सिटीज, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि आपको उतनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और उतनी पहले मेहनत करनी पड़ेगी। ये सब पे अप्लाई करती है, चाहे आप जहां से भी हों, जिस मर्जी स्कूल के हों। और जो 2-3 साल पहले आपने चीजें करनी है ना, वो तो सबसे पहली चीजें ये हैं कि आप देखें कि आपने अब कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं। अब सबसे पहली रिक्वायरमेंट्स जो हम सबको पता है वो SAT है, स्टैट एग्जाम जो होता है। अब स्टैट एग्जाम इज नॉट लाइक O levels, A levels एग्जाम और मैट्रिक FSC एग्जाम, जिनका एक सिलेबस है, यू एस दैट सिलेबस और आप यू कैन एस दैट एग्जाम। यहाँ पे आपको एक स्किल सेट के ऊपर जज किया जाता है
टू वेरी मच टू एन एक्सटेंट, और इसलिए आपने वो स्किल्स डेवलप करनी होती है, एंड यू कैन नॉट डेवलप योर स्किल्स ओवरनाइट, सो यू हैव टू स्टार्ट वर्किंग अर्लियर, 2-3 साल पहले करें। आपको मैथ्स के ऊपर काम करना पड़ता है, मैथ्स भी वो इस तरह का मैथ्स नहीं होता दैट यू कैन लर्न इट ओवरनाइट। और इंग्लिश का ये है कि इंग्लिश के अंदर आपको बहुत ज्यादा मेहनत रिक्वायर्ड होती है। मैंने खुद बहुत ज्यादा मेहनत की थी और आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट अ ईयर बिफोर, ठीक है। और दूसरा एक रूल ऑफ थंब जो सैट में ये होता है कि आपने लास्ट ऑप्शन नहीं रखनी होती। फॉर एग्जांपल एक अगर मार्च में सैट हो रहा है और एक उससे पहले हो रहा है, आप कह लें फॉर एग्जांपल, आई एम नॉट श्योर कि क्या डेट्स हैं आजकल, लेकिन जनवरी में हो रहा है, ठीक है। डोंट लीव इट टिल द मार्च। आप मार्च में ये हो सकता है कि आपकी तैयारी अच्छी हो, आप पैनिक कर जाएं, ठीक है, देयर इज अ ग्रेट चांस, क्योंकि इतना लंबा एग्जाम होता है, आप पैनिक कर सकते हैं, कोई और प्रॉब्लम आ सकती है, तो लास्ट डे या लास्ट चांस तक नहीं छोड़ना चाहिए। इसका रूल ये होता है कि आप कम से कम 2 चांस पहले एक बारी सैट दें, अपनी पूरी तैयारी से दें, और उसके बाद जो उसमें एरर्स अगर आते हैं, अगर आप पहली बारी में इतने अच्छे नंबर्स ले जाएं तो देन यू डोंट नीड टू रीअपीयर, बट इफ गॉड फॉरबिड आपके अच्छे नंबर्स नहीं आते तो दैट यू हैव एन ऑप्शन कि आप उसमें रेफर कर सकते हैं। फिर आती है बात कि कितना सैट स्कोर हमें चाहिए जिसके बाद हम कह सकें कि एडमिशन हमारा पक्का है। तो इसका कोई आंसर नहीं है। एक स्टैंडर्ड नंबर, एवरेज नंबर कैलकुलेट किया जाता है जो कि ओवर द इयर्स बढ़ता नजर आया है। मैंने खुद उसको देखा है कि जब मैंने एडमिशन लिया इट वाज अराउंड 1100 1200, और 1200 को अगर आप लेट 1200 में आए तो कहते थे कि भाई 90% देयर इज चांस कि आपका एडमिशन हो जाएगा। लेकिन अब पिछले कुछ अरसे से ऐसे बच्चे जिनका सैट में अच्छा आता था एंड दे यूज्ड टू गो आउट, अब वहाँ पे वो स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज और आपके रिलेशंस की वजह से वो अपॉर्चुनिटीज जरा कम हो गई हैं और डिवैल्यूएशन की वजह से आपकी एक्सपेंसिव हो गई हैं। तो आपका वो भी कंपटीशन अब पाकिस्तान में ही रहता है, जिसकी वजह से यू कैन नॉट डिटर्मिन अ स्पेसिफिक सैट वैल्यू जिसके बाद आप कहें कि मेरा 100% हो जाएगा। हाँ, यू कैन थिंक कि भाई 1300 से अबव है, देयर इज अ गुड इनफ चांस, और उससे जिस तरह आप आगे चलते जाएंगे देयर इज अ गुड इनफ चांस। दूसरी चीज आती है आपकी लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। पीपल लीव लेटर ऑफ रिकमेंडेशन टू द लास्ट मोमेंट, ठीक है, और वो सबसे खराब चीज होती है, क्योंकि आप जब देखें जो इस तरह की एप्लीकेशंस हैं यूनिवर्सिटीज की जिनमें डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, उनमें आपने हर चीज में अपने आप को मैक्सिमम तक लेके जाना होता है। ये असूल होता है। आपने सैट है, आपने सैट एस करना है, आपने पर्सनल स्टेटमेंट है, आपने पर्सनल स्टेटमेंट एस करनी है, आपने उसके अलावा लेटर ऑफ रिकमेंडेशन एस करने हैं। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन को एस करने का तरीकेकार ये होता है, आप उन इंस्ट्रक्टर्स के पास जाएं अपना लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लेके, या उनके पास जाएं उसके लिए जिनसे आपके थोड़े से ताल्लुकात अच्छे हैं, जिनके कोर्सेज में आपने अच्छा काम किया हुआ है, और उनको भी आप लास्ट मोमेंट पे ना अप्रोच करें, उनको भी आप कुछ अरसा नहीं बल्कि बहुत ज्यादा अरसा पहले उनसे बात करके रखें, कमिटमेंट ले लें उनसे। ये बात हो गई लेटर ऑफ रिकमेंडेशन की। अब बात आती है पर्सनल स्टेटमेंट की। पर्सनल स्टेटमेंट एक ऐसी चीज होती है जिसके ऊपर अब आके यूनिवर्सिटीज बहुत ज्यादा एम्फसाइज करने लग गई हैं, और ये आपकी आउटसाइड एकेडमिक्स लाइफ को कैप्चर करता है, उसमें आपकी स्किल्स को देखा जाता है। तो इसके लिए ये नहीं है कि आप ओवरनाइट आप बैठेंगे एंड यू कैन सी कि मैं एक ऐसे लिख रहा हूँ। इट्स नॉट लाइक एन ऐसे। आप यू हैव टू हैव अ स्ट्रॉन्ग कंटेंट टू राइट अबाउट, ठीक है, एंड दैट कंटेंट आप लास्ट मोमेंट पे नहीं कर सकते, एंड इट्स बेटर कि आप वो आखिरी साल से पहले करें, यानी 2-3 साल पहले, ताकि वो थोड़ा इस तरह ना लगे कि भाई इसने सिर्फ एप्लीकेशन के लिए काम किया है। तो इसमें आपको मैं कुछ एग्जांपल्स दे सकता हूँ कि जिस तरह मैंने बहुत सारे दोस्त इस तरह के हैं जो रिमोट एरियाज से आए हैं, ठीक है, और उन लोगों ने अगर आप देखें तो उन एरियाज में बहुत बहुत बड़े कम्युनिटी सर्विस के प्रोजेक्ट्स किए हैं। उन्होंने अपने पूरे नेबरहुड्स को अपलिफ्ट करने के प्रोग्राम्स किए हैं। उन्होंने कितनी वेबसाइट्स बनाई हैं, उन्होंने डिफरेंट लैंग्वेजेस लर्न किए हैं, उन्होंने आप कहें स्पोर्ट्स, अगर आप यू हैव टू डिसाइड अ स्पेसिफिक एरिया दैट यू वांट टू एज। फॉर एग्जांपल आप स्पोर्ट्स में अच्छे हैं, आप स्पोर्ट्स के इवेंट्स में जाएं, उनमें अवार्ड्स दें, अपनी वो वाली साइड को पॉलिश करें। अगर आपको और कम्युनिटी सर्विस के आपके पास ऑप्शन है, कम्युनिटी सर्विस में आप करें काम, ठीक है। उसके अलावा आप डिबेट्स और जो भी आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है आपने उसको एज करना है, ताकि आप बिल्कुल वो ना लगे कि भाई इसके नंबर्स ही अच्छे आते हैं, ये एक डाइवर्स पर्सनैलिटी नहीं है। और जब आपके पास कंटेंट अच्छा होगा फिर आप पर्सनल स्टेटमेंट लिखने की तरफ आ सकते हैं। और और ये कंटेंट आप जमा करेंगे 2-3 साल पहले से, और पर्सनल स्टेटमेंट लिखने की बारी आती है आपके, मैं तो कहूंगा कि कम से कम एप्लीकेशन डेडलाइन से 2 महीने पहले करना शुरू करें, क्योंकि इसमें भी बहुत एरर्स आते हैं। आपके पास वर्ड लिमिट बहुत कम होती है,
और आपने कंटेंट बहुत ज़्यादा कवर करना होता है। तो ये बात हो गई। उसके अलावा अगर आप कहें तो ओवरऑल प्रोसेस का मैं कहूँगा कि आप कम से कम हफ्ता 2 हफ्ता पहले ये काम सारे करके रखें, मुकम्मल करके रखें, बिकॉज जितना डिले करेंगे उतना पैनिक क्रिएट होता है और लास्ट मोमेंट पे चांसेस होते हैं कि गलती कोई ना कोई हो जाएगी। दूसरा एक सबसे बड़ी बात होती है एप्लीकेशन में जो लम्स की है वो फाइनेंशियल एड की है, और उसमें मेरी एक ये जो डॉक्यूमेंटेशन की है उसमें मेरी ये सजेशन है कि आप अपने घर वालों के साथ बैठें, आप पूरी अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को इवैल्यूएट करें, बिकॉज मेनी टाइम्स इस तरह होता है कि हमें लग रहा होता है दैट वी वोंट बी एबल टू अफोर्ड इट, क्योंकि हम बहुत सारी और चीज़ों को साथ लेके चल रहे होते हैं। लेकिन अगर आप रैशनली देखें और वो लॉजिकली देखें तो वो यूनिवर्सिटीज के लिए वो ये नहीं होता कि वो कहें कि भाई आपको अगर फॉर एग्जांपल आप अपनी पूरी वेल्थ को देखें, वेल्थ को रखें, अर्निंग्स को रखें, नंबर ऑफ मेंबर्स को रखें फैमिली के, उन सारी चीज़ों को सामने रख के देखें कि हम किसी भी और तरह से फाइनेंशियल एड अगर अफोर्ड नहीं कर सकते, हाँ देन गो फॉर फाइनेंशियल एप्लीकेशन, बिकॉज अदरवाइज इट्स टू मच वर्कलोड और इट वुडंट बी वर्थ इट कि अगर आपको पता है कि आप किसी तरह पे करते हैं और आपको लगता है हाँ भाई कोई चांस लग जाएगा और वो फाइनेंशियल एड मुझे दे देंगे, तो वो सीन नहीं हो सकता। तो आखिर में मेरी यही सजेशन है कि केयरफुली इवैल्यूएट करके ये इस काम में जाएं, क्योंकि इसकी अंदर बहुत ज़्यादा एफर्ट पुट होती है। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, और अब Manur Bajwa will talk about further discussion about LUMS. थैंक यू सो मच अतय, और बहुत सारी चीजें मुझे लगता है आपने बहुत अच्छे लेवल पे जो है वो क्लियर कर दी होंगी बहुत सारे लोगों के लिए। ओवर टू महानूर, आप इसमें क्या ऐड करना चाहेंगी लम्स के हवाले से? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जो हमारे मैंने और आतिर है ना, हम लोग ने अपनी कॉन्वर्सेशन इस तरह डिवाइड की थी, जो सारी टेक्निकलिटीज है ना वो आतिर डिस्कस कर लेगा। तो जितने भी लोग देखे ना उन्होंने घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी कि ये सब चीजें क्या होती हैं, किस तरह करनी है। हम लोगों ने भी ना आपकी तरह ही सीखी थी, तो और अब तो वी आर ऑलवेज हियर टू गाइड यू गाइज। तो सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि आप लोगों ने घबराना नहीं है। अब दूसरा जो है ना, मैं अपनी स्टोरी से स्टार्ट करना पसंद करूंगी। मैं जो हूँ ना, मेरा क्लास 5 से यही गोल था कि मेडिकल मेडिकल मेडिकल, जैसे आते ने अपनी बात बिल्कुल सही की, दो ही होते हैं, या डॉक्टर या इंजीनियर। तो ऑब्वियसली डॉक्टरी की तरफ मैं चली गई। तो क्लास 5 से डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर, ए लेवल्स के बाद तो फिर एंट्री टेस्ट हुआ नहीं, फिर अब आगे क्या करना है, आपकी पूरी जिंदगी तो पलट गई है। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि अब किया क्या जा सकता है। अगर मुझे थोड़ी टाइमली, थोड़ा पहले अगर कोई गाइड कर देता ना, तो प्रोबेबली मुझे गैप ईयर ना लेना पड़ता, पर आई वेंट ऑन अ गैप ईयर which was very draining for two reasons मैं कहूँगी। एक तो ये कि being a good student throughout your academic career, आपके कुछ goals होते हैं और आपने achieve करने होते हैं, एकदम से you're stuck और आपके सारे जो दोस्त हैं ना वो पाकिस्तान और अब्रॉड के टॉप टियर यूनिवर्सिटीज पे जा रहे होते हैं, एंड यू आर जस्ट स्टक विद द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एडमिशन इन नेक्स्ट ईयर, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी के एडमिशन के साथ ये सीन होता है कि देयर इज अ प्रोबेबिलिटी, हाँ या ना। तो वो सारा टाइम मैंने इस चीज में गुजारा। पर मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगी कि मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगी कि मैंने बिल्कुल स्विच किया था फ्रॉम साइंसेस टू अकाउंटिंग एंड मैथमेटिक्स, एंड जैसे अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, मार्केटिंग। आई हैड नेवर हर्ड ऑफ दिस स्टफ, और मेरे लिए हर चीज एलियन थी। तो जब हम लोग अपने फर्स्ट सेमेस्टर में गए ना, तो हम लोग को कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं जो 100 लेवल होते हैं। तो वी ग्रेजुअली इंक्रीज 100 लेवल कोर्सेज, 200 लेवल कोर्सेज, 300 लेवल कोर्सेज। तो जो 100 लेवल कोर्सेज पढ़ने होते थे ना, तो दे यूज टू टेक मी, क्योंकि ऑलरेडी मैं एक गैप ईयर पे थी, तो मेरा था नहीं भाई बहुत रेस्ट ले लिया, अब फुल जमा के पढ़ाई करनी है। तो मैं पहले सेमेस्टर जाके बड़ी पढ़ाई की, मैं पूरा दिन एक चीज पढ़ के जाती थी, और हमारे क्विजेस हुआ करते थे, और मेरे 2/10 आते थे, 3/10 आते थे। और जो मेरे साथ वाले बच्चे बैठे होते थे ना, वो ये बोलते थे यार ये लोग इन चीजों के क्विजेस क्यों ले रहे हैं, तो इतनी बेसिक चीजें हैं। और मैं उनको 2-2 दिन बैठ के पढ़ती थी और मुझसे होते ही नहीं थे। तो ना आपका पहला सेमेस्टर यूर अ लिटिल ऑन द बैक फुट, बट सिर्फ मैं इतना कहना चाहूंगी, सिर्फ पहले सेमेस्टर में कुछ चीजें होती हैं, अगर आप लोग उन पे सही फोकस कर लेना, तो आप आगे 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 बिल्कुल साथ साथ चल जाते हो। ऑब्वियसली आगे जाके इंस्टेंसेस होंगे, जिस तरह मैं एग्जांपल देना चाहूंगी। आतिर को मैं इस तरह जानती थी कि मेरी फर्स्ट सेमेस्टर इकोनॉमिक्स की क्लास थी, मैंने जिंदगी में इकोनॉमिक्स का नाम नहीं सुना बचपन से जिंदगी में, और हमें सर पढ़ा रहे हैं इन्वेस्टमेंट वैल्यू कर्व्स और ये सब, और फिर उनके बीच के ग्रेडियंट्स निकले, मुझे तो समझ में नहीं आई थी क्या हो रही है। वो भी 8 AM थी, तो मैंने 8 AM से 9:15 होती थी। उसके बाद मैंने जाके आतिर ना क्लास में बहुत ज्यादा बोलता था, मैंने कहा आतिर मुझे थोड़ा बहुत समझा दो। तो मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि एज अ कम्युनिटी जो है ना, लम्स ऑलवेज कम्स टुगेदर। तो आतिर एक एग्जांपल, और आतिर इस बात से एग्री करेगा, आई थिंक बाकी सब भी करेंगे, यूनिवर्सिटी में बहुत हेल्पिंग लोग मिलते हैं। तो फॉर मी आतिर वाज दैट फ्रेंड हु हेल्प्ड मी थ्रू आउट, एंड ही
स्टिल डज, अभी भी हमारे, मैं अपने इनरोलमेंट से पहले ना आते से पूछती हूँ आते तुम्हारी इनरोलमेंट क्या है, ताकि हम मिलके कर लें। इसके अलावा अगर मूविंग ऑन ना, मैं आपको चेंजिंग ऑफ फील्ड्स तो बता दिया कि थोड़ा बहुत मसला होता है पर आगे जाके सही हो जाता है। एट द एंड ऑफ द डे जो है ना, आपकी सारी जो स्ट्रगल होती है ना इमोशनली और बाकी तरीके से, इट पेज ऑफ। सो अगर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, अब मैं थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करना चाहूंगी कि लम्स में एडमिशन जो है ना, क्योंकि लास्ट सेमेस्टर हम लोग की फी वो 4,60,000 समथिंग, और हर साल ये बढ़ती जा रही है, और इस दफा भी कोई 41% इंक्रीज है, जो कि अभी तक कंफर्म नहीं है, पर अगर आप इन्फ्लेशन रूल अप्लाई कर रहे हैं तो हर सेमेस्टर आपकी फीस बढ़ेगी। तो उसको अफोर्ड इन इटसेल्फ करना जो है ना बहुत बड़ी चीज है, जिसकी वजह से बहुत लोग इसके एलिजिबल होते हैं। मतलब मैं कहना चाहूंगी हमसे बहुत अच्छे लोग जो होते हैं ना, वो जो हैं इसके लिए एलिजिबल होते हैं, एक्स्ट्रा ट्रेंड होते हैं, प्लस जो सिर्फ फाइनेंशियल एस्पेक्ट है ना, वो थोड़ा सा पीछे कर देता है। तो इसमें मैं सिर्फ ये ऐड करना चाहूंगी कि मैं आपको 2 एग्जांपल्स दूंगी। सबसे पहले तो ये है कि ना, एक लम्स में एक शॉप थी जाकिर तिक्का, वहां पे एक वेटर अंकल काम किया करते थे। उन्होंने इसी तरह ना, एक बच्चा आया हुआ था, बैठा था, इससे हम लोग वेटर से गपशप लगा लेते हैं। उन्होंने उनको ये कहा कि जो है ना, बेटा मेरा भी दिल चाहता है, आप लोग इतना पढ़ते शरते। उन्होंने तो अपने से दिल की बात की है, उन्होंने लगा ऐसे हो जाएगा। उस बच्चे ने आके वहां एक LDA फोरम है, उस पर उनके लिए क्राउड फंडिंग की, और आई थिंक विद इन a week or 2 weeks, I'm not sure about the details, but in a very short amount of time उनकी सारी एजुकेशन के एक्सपेंसेस कंप्लीट हो गए थे, और साथ में साथ उनके घर भेजने के भी एक्सपेंसेस उन्होंने कवर अप कर लिए, क्योंकि वो इधर जॉब करके अपनी फैमिली को सपोर्ट करे थे, सिर्फ इसलिए उन्होंने अपनी एजुकेशन छोड़ी थी। और नाउ ही इज अ ग्रेजुएट फ्रॉम अ वेरी गुड यूनिवर्सिटी, और अब वो लम्स में आके हमारे गेस्ट स्पीकर सेशन थे। तो व्हेन आई सॉ दैट गाय talking, he was so well groomed, well polished, and he was, I think his experience made him that way. तो एक तो मैं ये एग्जांपल देना चाहूंगी कि अगर आपकी मोटिवेशन हो ना, अगर आप करना चाहें तो कुछ भी हो सकता है। और दूसरी मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगी कि मेरा आदर के हमारे एक म्यूचुअल फ्रेंड है, एंड ही इज फ्रॉम अ वेरी लाइक रिमोट एरिया ऑफ पाकिस्तान। एंड अगर आप वहां पे कहें ना, अभी भी जैसे ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं तो उनको दूसरी सिटी जाना पड़ता है नेट लेने के लिए, वो वाली टाइप सारी चीजें हैं। पर उन्होंने जो है और उनके वहां पे ना पूरा ट्राइबल चीफ वाला सारा सिस्टम है कि या आप अपने ट्राइब में जाओगे ये करोगे। तो ही ब्रोक आउट ऑफ दैट ओनली बिकॉज उन्होंने ना इधर लम्स का NOP प्रोग्राम में अप्लाई किया, वो NOP पे सिलेक्ट हुए। पूरा प्रोसीजर मैं भी आपको एक्सप्लेन करती हूँ, बट नाउ वो क्रिकेट टीम का हिस्सा है। ही वॉज द बेस्ट बैट्समैन अवार्ड। वो कराची में ट्रिप पे गए थे, IB और लम्स के मैचेस हुए थे। ऑब्वियसली हम लोग हार गए थे, हमारी तैयारी अच्छी नहीं थी इसलिए, पर जो है उनको बेस्ट क्रिकेट का उनको क्रिकेट में है। इसके अलावा वो 3 और सोसाइटीज में है। हमारे लम्स में एक स्पेड सोसाइटी, उसने एक इवेंट अरेंज किया था और उन्होंने वो इवेंट भी जीता था। तो नाउ ही इज a completely different human being, not इस रिस्पेक्ट में नहीं कि बंदा बदल गया। अगर आप बंदों को सही अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करें, उनको हेल्प करें ना, तो फ्यूचर बदल देते हैं। और हम सब, आई थिंक हम सब इस बात पे तो एग्री करेंगे कि अगर आप इन रिमोट एरियाज की ना एक स्पेशल बात होती है जो हम बिग सिटीज वाले कभी रिलेट नहीं कर पाएंगे, कि आप उनका एक बंदे की जिंदगी बदल देना तो आप उस पूरे एरिया की जिंदगी बदल देते हैं, क्योंकि दे वेरी 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 इनटू अपलिफ्टिंग द एंटायर कम्युनिटी। जैसे अभी आतिर ने पहले कहा था कि उन लोगों ने अपनी सोसाइटीज में जितने भी उनकी कम्युनिटीज में जितने भी प्रोग्राम्स उन्होंने हिस्सा लिया, और उनके सारे प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें उनकी कम्युनिटी को अपलिफ्ट करना चाहते हैं। तो मैं ये चीज का एम्फसाइज करना चाहूंगी, अगर आप एक बंदे को सिर्फ हेल्प आउट कर दें तो आप एक पूरी कम्युनिटी को हेल्प आउट करेंगे। फिर इमेजिन करें उसका इफेक्ट कितना होगा। मूविंग ऑन है, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ NOP प्रोग्राम इनका होता क्या है। हमारा ना सबसे पहले NOP कोचिंग सेशन होता है, उसमें बच्चे सिलेक्ट होते हैं, 2 हफ्तों के लिए लम्स आते हैं, और वो आपको सैट की देने की प्रैक्टिस कराते हैं किस तरह करना है, और आपकी सैट रजिस्ट्रेशन फीस भरते हैं, क्योंकि जो लोग उसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते, खुद अफोर्ड नहीं कर सकते, वो इस प्रोग्राम में सेलेक्ट होते हैं। और उसके बाद अगर आपका सैट क्लियर आउट हो जाए तो फिर आपको NOP स्कॉलरशिप के लिए बुलाते हैं। इसको हम कहते हैं नीड बेस्ड स्कॉलरशिप जो लम्स ऑफर करता है। और फिर इसकी ये बहुत लेंथी प्रोसीजर है। फिर आपके अम्मी अबू या किसी एक से फैमिली मेंबर को बुलाया जाता है, आपके फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स डिस्कस होते हैं, और अगर आप लम्स के मुताबिक क्वालिफाई करें ना तो फिर आपको NOP स्कॉलरशिप मिलती है। और वो भी डिपेंड करती है, कुछ होती है 100% स्कॉलरशिप जिनमें आपको साथ में स्टाइपेंड भी मिलता है लम्स में अपने एक्सपेंसेस मैनेज करने के लिए। पर अगर कभी कभार ये होता है कि इवन दो यू आर नॉट दैट वेल ऑफ, पर आप लोग ना NOP प्रोग्राम के लिए क्वालिफाई नहीं करते,
तो इसके लिए हमने साइट पे 2 और ऐड कर दिए हैं, एक है हेल्प फाउंडेशन और एक है आलमगीर फाउंडेशन। ये 2 मेजर पाकिस्तान की फाउंडेशन हैं जो बच्चों को स्पॉन्सर करती हैं। तो अगर आप में से किसी को भी इनके प्रोसेस में मदद वगैरह चाहिए हुई ना, तो वो आप लोगों के पास रमशा वगैरह या सिंह के कॉन्टेक्ट्स होंगे, डू लेट अस नो, वी आर मोर देन विलिंग टू हेल्प। तो एक तो ऑप्शन जो होती है, पर मैं तीसरी बार डिस्कस करना चाहूंगी, हमने स्लाइड में इसलिए ऐड नहीं की थी, काफी लोग जो होते हैं ना बैंक लोन की तरफ जाते हैं क्योंकि वो इजी वे होता है, सामने मिल जाता है, आप अब्बा के नाम पे ले लोगे, किसी के नाम पे ले लोगे, पर आपके नाम पे नहीं मिलेगा। पर हमने काफी लोगों से इस बारे में डिस्कशन की थी और हमने इस चीज पे, इसकी जिस्ट ये थी कि हम आपको एडवाइस करेंगे कि आप बैंक लोन मत लें, क्योंकि एक तो उसकी इंटरेस्ट इतनी ज्यादा होती है और दूसरा बेसिकली ये होता है कि जब आप अपनी प्रोफेशनल स्टार्ट करते हैं ना अपनी डिग्री के बाद, आप कर्जे में होते हैं, तो आप ऑलरेडी 10 स्टेप्स बिहाइंड होते हैं बाकी बच्चों से, और इतने कंपेटिटिव वर्ल्ड में ना वो आपको थोड़ा बहुत डाउन कर देता है। अनलेस एंड अनटिल इट्स वेरी नेसेसरी और कोई और ऑप्शन नहीं हो रही, तो हम बैंक लोन की तरफ देख सकते हैं, वो भी लाइक आई सेड इट्स अप फॉर डिस्कशन, बट ज्यादा 2 अच्छी ऑप्शंस ये हैं। अगर हम अब आगे चलते हैं तो हम इस बारे में बात करना चाह रहे थे कि जो है ना ऑन कैंपस जो है ना, आप लम्स में इंशाल्लाह आप जिन जिन ने भी अप्लाई किया आप लोगों का एडमिशन हो गया। अब ऑन कैंपस जो आपने फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज आपके लिए अवेलेबल हैं, क्योंकि लम्स इज अ रिलेटिवली एक्सपेंसिव प्लेस टू लिव इन वेयर इट्स डिफिकल्ट टू मैनेज योर बजट पर मंथ वाइज। इसके लिए जो है ना हमारे दिमाग में 4 अपॉर्चुनिटीज थी। सबसे पहला तो जो है ना स्कॉलरशिप प्रोग्राम है लम्स में, पर इसके मैंने आपसे ने डिस्कशन की थी और हम इस चीज से पहुंचे थे कि ना आप इसकी बेस पे अपना डिसीजन मत लगाइए, क्योंकि टॉप 15 बच्चों को मिलता है, जिसमें से सिर्फ टॉप 3 की जो होती है ना 100% स्कॉलरशिप होती है। और हर किसी को लगता है कि भाई मुझे लगता था कि मैं अपने स्कूल में सबसे अच्छी हूँ, यहाँ पे हर किसी को लगता होगा हम अपने स्कूल में सबसे अच्छे हैं, गिवन है, जस्टिफाइड है। पर यूनिवर्सिटीज में ना पूरे पाकिस्तान के सबसे अच्छे अच्छे बच्चे आ रहे होते हैं, और इन बच्चों ने पूरी जिंदगी समर स्कूल्स किए हुए हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ी हुई है, जिस तरह आते रहे, अकाउंटिंग पढ़ी हुई है। तो यूं होता है कि जब आप आगे जाते हैं ना तो टॉप 15 में आना बहुत मुश्किल हो जाता है 4000 के बैच में से। तो इस चीज को आप इस पे अपना डिफाइन मत करें, पर ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम होता है जिसमें पहले 3 टॉप 3 की 100% ट्यूशन फी वेव्ड होती है, और बाकी 15 की मैं तो ऊपर वाले 15 में नहीं हूँ, इसलिए मुझे एग्जैक्टली अंदाजा नहीं है किस तरह ट्यूशन फीस वेव्ड ऑफ होती है। पर जो पॉलिसी में है वो ये है कि आप लोगों की 80% का, फिर एक 80% कुछ को वेव ऑफ कर देते हैं, 60% कर देते हैं, 40% कर देते हैं, 20% कर देते हैं, यूँ टाइल्स में चलते हैं। पर दिस इज ऑल्सो एन ऑप्शन अवेलेबल। पर इसके अलावा अगर आपका एडमिशन हो जाए ना, हम आपको 3 और अपॉर्चुनिटीज बताना चाहेंगे जो आप वहाँ पे कर सकते हैं। लम्स जो है ना DHA में है, और DHA के इर्द गिर्द जो है ना बहुत ज्यादा लोग रहते हैं जिनके बच्चों को कांस्टेंट ट्यूशन चाहिए होती है। और क्योंकि लम्स का पर से एक नाम है कि यहाँ पे थोड़े इंटेलिजेंट बच्चे पढ़ने आते हैं, तो हमें ट्यूशन आसानी से मिल जाती हैं। तो लम्स के बच्चों ने अपना एक स्टार्टअप शुरू किया हुआ है, ट्यूटर मी। उसमें आप अपनी बताते हो कैटेगरीज कि मुझे इतनी पे चाहिए, मैं इस टाइम काम कर सकता हूँ, और हर किसी की प्रेफरेंसेस होती हैं, जिस तरह सम वुड बी मोर कंफर्टेबल टीचिंग गर्ल्स, लाइक फॉर एग्जांपल आई एम अ गर्ल, मेरी अपनी पर्सनल प्रेफरेंसेस होंगी। अब अपनी पर्सनल प्रेफरेंसेस उनको फॉर्म फिल करके देते हो और आपको उसके मुताबिक स्टूडेंट से जो है ना मैच कर देते हैं। उसमें उनका अपना कमीशन होता है फर्स्ट मंथ के लिए, बट इट गेट्स यू अ स्टेबल जॉब, आपकी इनकम आना शुरू हो जाती है कि आप एक्सपेंसेस मैनेज करना शुरू कर दो। पर ये जो होती है ना थोड़ी कमिटिंग जॉब होती है, क्योंकि पढ़ाई बहुत 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 हेक्टिक चल रही होती है हर वक्त। सिर्फ लगता है दूर से कि यूनिवर्सिटीज में पार्टी होती है और ये सब कुछ होता है, पर हर वक्त पढ़ाई बहुत हेक्टिक चल रही होती है। तो हम सबसे ज्यादा रिकमेंड करेंगे कि जो फ्रीलांसिंग है ना, जिसमें फाइवर आ गया, अपवर्क आ गया, प्लेटफॉर्म्स आ गए, पर बेसिकली जो आपको स्किल्स आने चाहिए ना, डिजिटल डिजाइनिंग ले लें, ग्राफिक डिजाइनिंग ले लें, वेब डिजाइनिंग ले लें, कंटेंट राइटिंग ले लें। हम अभी सिंह से बात कर रहे थे और इस बारे में इन लोगों का एक बहुत अच्छा, अभी दिस इज अ प्रपोजल अप एंड वर्क्स कि हम लोग कोशिश करते हैं कि वर्कशॉप्स अवेलेबल बनाए मैसेज के लिए जिसमें ग्राफिक डिजाइनिंग सिखाई जाए। इन लोगों का बहुत अच्छा आइडिया है, तो आई थिंक वो सबको काफी हेल्प आउट करेगा इन रिस्पेक्ट कि आप ऑलरेडी एडमिशन से पहले ना आपके पास एक स्किल होएगा जिसको आप कैपिटलाइज करके अपने एक्सपेंसेस मैनेज कर सकते हो। इसके अलावा पेड इंटर्नशिप्स होती हैं, और उसके लिए सबसे बड़ी चीज है कि आपको लम्स में आती है ना नेटवर्किंग करनी पड़ती है। एवरी यूनिवर्सिटी इज अ हब ऑफ नेटवर्किंग। तो आपने आती ही ना, जैसे आप नेटवर्किंग करोगे ना, आपको पता चलेगा यहाँ पे ये इंटर्नशिप हो रही है, यहाँ पे ये इंटर्नशिप हो रही है। एक तो आपके एक्सपीरियंस में बहुत काम आता है, दूसरा आपको थोड़ा बहुत अर्निंग वगैरह भी मिल जाती है। इसके अलावा ऑन कैंपस भी अर्निंग अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, जिस तरह जो हमारी सारी लैब्स होती हैं, कंप्यूटर लैब्स, IST,
वो 24/7 ओपन होती हैं, तो उनमें जो बच्चे बैठते हैं ना सुपरविजन के लिए, तो उनके लिए उनको भी थोड़ा बहुत पे किया जाता है। पर मैंने इस बारे में डिस्कशन की थी, वो कहते हैं कि उसके वर्किंग आवर्स बहुत लॉन्ग होते हैं, पे इतनी ज़्यादा नहीं होती, इसलिए हमने इस स्लाइड में ऐड नहीं की थी। पर बाकी हम ये कहना चाहते हैं कि मैं आई थिंक मैं अपने आतर दोनों की तरफ से बात कर रही हूँ कि अगर आप एक चीज़ पे अपना दिल सेट कर लो ना कि मुझे इस यूनिवर्सिटी में जाना है, फाइनेंशियल एस्पेक्ट हर चीज़ वो मैनेज हो जाएंगे, उसकी हम हेल्प करने की प्रॉमिस करते हैं। क्योंकि मैं और आतर आई थिंक आई स्पीक फॉर एवरीवन ओवर है कि जब वी आर विलिंग टू हेल्प जितना हमें आता है, और अपॉर्चुनिटीज एक दफा आप एक कदम उठाओ ना, अपॉर्चुनिटीज आहिस्ता 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 आती जाती हैं, एंड यू नीड टू स्टार्ट समवेयर। तो wherever our help is needed, we're more than willing to offer it. And that's all. If you guys have any question, I think we'll have a question answer session later on. Over to Ramsha. That's all from my side. Thank you so much Mahanur and Atir, and this was amazing. मतलब बहुत सारी चीजें आप लोगों ने बहुत सारी डिटेल में जो है वो क्लियर कर दी है, एंड वी आर रियली वेरी होपफुल। अभी भी जिसको कोई चीज कोई पार्ट जो है वो क्लियर ना हुआ हो, या उसमें कोई कंफ्यूजन हो, या अभी करंटली आप उस प्रोसेस के थ्रू हो लेकिन उसमें भी कोई आपको कंफ्यूजन हो रही हो, तो वी आर ऑलवेज हियर। आप लोग हमसे डायरेक्टली कांटेक्ट करें सिंक से, एंड वी विल मेक योर कांटेक्ट इजी फॉर यू कि हम आप लोग का जो कांटेक्ट किसी लम्स के स्टूडेंट से लाजमी करवा दें। नाउ ओवर टू मरियम शबीर फ्रॉम लाहौर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। मरियम, आप अपने इंस्टीट्यूट के बारे में जो है वो किस तरह से ब्रीफ करेंगी? Okay, thank you, Ramsha. So, as I mentioned before, my name is Mariam Shabir, and yes, I'm doing my double majors from in marketing and finance from Lahore School of Economics. So, as we all know, business management or the management sciences is a field which is very saturated. Let's face it. आपके इतने ज़्यादा graduates हैं. What I'm going to be talking about mostly is what you can do to stand out among all those students and among all those CVs जो आती हैं after the job market. What can you do, and how can you basically highlight yourself? So right now I'm enrolled in my junior year in Lahore School of Economics. I'm also a teaching associate, and I did my 3rd semester from Bahçeşehir University, Istanbul, on a 100% scholarship through Lahore School of Economics. So it's all about opportunities. It's all about grabbing it at the right time with the right will. So I'm first and foremost, when we talk about admissions, so as Mahanur and Atir already briefed you all, how the S pattern of LSE is actually very similar to an SAT. If you're already preparing for an SAT, you are good to go. The mathematics section is in fact a little easier. The part that will be जो थोड़ा आपको tricky लगेगा, that's going to be English. So you need to prepare for English. If you're not a very regular reader नहीं है आप articles नहीं पढ़ रहे, so then you should really start working on your vocabulary, maybe looking to a lot of articles आप पढ़ो and start working on that. One thing that I would like to focus on in regards to Lahore School of Economics, that is that you should focus on your essay writing skills. Start writing about your SATs, start writing about on essays, start writing about different topics. I think one essay a day is more than enough, and work on all the synonyms and all the metaphors that you can get and use it and apply it continuously. Because one thing that I can assure you कि जैसे LAMS के अंदर वो आपकी personal statement देखते हैं, in LSE when your entry test is here, they look at your essay. So your essay is very important. Getting into LSE, the requirements are pretty similar, 60% in matric or equivalent to O levels, and 60% in A levels. This year, because of the pandemic and coronavirus, you guys will be having your entrance test and interview on Zoom. So you should really start working. Trust me when I say this, कि एक interview जो आप live दे रहे होते हो और एक interview आप Zoom पे दे रहे होते हो. Recently, I was giving an interview for a program to apply in Singapore. And the person was basically sitting in Singapore, and I'm actually very, very comfortable with interviews. But this was the first time I was giving an interview online. And trust me, it's very different. It's very different. So you should start working on it, start interacting with your family members, get on call on Skype and start prepping for it. छोटी-छोटी चीजें matter करती हैं. What you're wearing, where you're sitting, how you're talking, your hand gestures. क्योंकि सामने तो आपका confidence फिर भी नजर आता है.
On call and on video call, on camera, it's completely different. So you should start working on that. So the deadline for the application submission this year, LSE has started it online as well. So you can submit it, use a CAM scanner as an application, because I see a lot of questions coming up कि हम online अपने घर बैठे कैसे करें. So it's very easy. Download this application called CAM scanner, scan your documents over there, and then just upload it over there. One thing that I would recommend, जो मेरे साथ personally experience ये था कि when I only applied to LSE and NAS. So when I was applying for LSE, I remember I was in Dahati, which is actually very far away. And I could not submit my documents live. And I was literally, I was panicking because I got no entrance test card. Turned out that I had posted my documents and they had never received it. So one thing that I'm going to suggest is, aap live jao. This is so important. Lambi line hai, it's okay. At least you'll be sure you'll get your card. Wahan pe ma'am Jabeen hoti and there are a lot of other teachers who will guide you to it. And even though it will take 1 hour or 2 hours, you should really go live. Abhi to okay, the pandemic is here, but once inshallah when it finishes, I would always recommend to submit your documents jaake in not the Berkeley branch, but the other branch that is in Gulbarga. Moving on to the next slide, I will be talking about how to make the most out of LSE. But first, we should really talk about the academic program. So LSE basically offers you a pretty wide range of degrees. First and foremost, I would like to finish the stereotype that is in LSE especially. I remember when I came in and एक stigma था, if you only अच्छे GPA वाले, the students who have a good GPA, they end up in double majors in marketing and finance or accounting and finance. This is a complete false stereotype that I'd like to highlight. ऐसी कोई बात नहीं है. Economics and finance is such a good degree. Economics and political science is such a good degree. And especially noticing marketing and media, there's a stereotype that children who don't have a good GPA, who are not serious, they end up doing marketing and media. That's honestly very false. Look for your strength. If you feel like you have that creative sense in you, जो आपको उन courses से फायदा होगा, you cannot make the most out of that if you're not really good in finance. So go for something that if you think you have a creative vibe in you, creative sense, that you want to go towards something like graphic designing and digital marketing, then definitely go for marketing and media. Trust me when I say this, the job market for marketing and finance and marketing and media is quite similar. So don't get into that. Don't get into the stereotype. Because also that I would like to highlight is that LSE में ये होता है कि LSE takes in a lot of students, but it sifts them out in the first year. उसमें ये होता है कि within the first year you have to start choosing your majors. In something that a lot of people say GPA matter नहीं करता, GPA ये नहीं करता, GPA does matter, especially when it comes to LSE. Your GPA does matter. First and foremost, ये कि in your first 2 semesters, if you get a GPA above 3.5, only then you can apply for double majors in marketing and finance, and it's really आपकी restrict हो जाती हैं options to choose for your degree. But now only you can apply for marketing and media or SCSI degrees now. So you have to focus on your GPA, which I will notify why ahead as well. You should focus on your GPA, and it's honestly, if you work consistently, if you work on your presentation skills, if you work on consistency, it's not that hard. I see a lot of students do sciences. I was a sciences student in A-levels, and when I came to LSE, so I had a lot of friends who had done A-levels in economics and business. And I thought that I'd be behind, but quite honestly, I was doing better than them. Why? Because when they came into the university, they started thinking, कि ये तो हमने किया हुआ है, ये आसान है. And I started taking it as a challenge, and then I started taking it very seriously. और वो consistency वाला जो factor है ना, वो वाला आपका यहाँ पे apply बहुत करता है. And at the end of the day, results showed. So these are some, and then I would also discuss, if, for example, if you want to go towards teaching a PhD, economics is a very good degree. If you want to go for, I have a lot of friends who are doing CFA in their 3rd year.
while they were enrolled in accounting and finance. So this is also very good. आगे अगर आपने, if you want to look at your future job prospects, so CFA आपने करना है, CSS करना है, तो economics and political sciences people prefer. So you should start thinking in the first year, yeah, where do you want to go, and go in that direction. Direction is so important. I know people जो कर रहे होते हैं, but they don't really know where they're heading. That's totally fine in the first semester. That's totally fine in the second semester. But quite honestly, if you're in your second year, now's the time when you should start thinking कि मैंने क्या करना है before it's too late, before your GPA is sacrificed, and before you don't have a proper set out plan for yourself. Can we move on to the next slide, please? So one thing about LSE that I absolutely love, and I own up to it, is its scholarship, because it's a non-profit organization, and the scholarships that LSE gives is actually very generous. There are many options, one of them being the need-based scholarship. You just need to have your documents, complete documents. You should have all your documents, which includes, they're going to ask you your financial statements, your salary slips, your number of siblings, what they're doing, number of cars, आपके plots, even maybe even pictures of your house. So काफी कुछ मांगेंगे, but when it's compiled, it's a pretty thick, heavy form होता है. But if you fill that up, you can get either 25% scholarship or 50% scholarship, and even 100% scholarship. I know a lot of friends who are taking 100% need-based scholarship, and the people at the financial and external relations are very cooperative in this regard. All you need to do is complete your documents, and you can get a pretty good chance at a scholarship, need-based scholarship. Then you have a merit-based scholarship. अब ये दो types की होती है. एक merit-based scholarship होती है, that is before you get registered. This is LSE के अंदर, if you have like 85% in SSC, or as you call it, 3 A's in A levels, so you automatically get 50% scholarship in LSE. But you have to maintain, now this applies to all scholarships, you have to maintain your scholarship. If you get 3.5 तक आपकी complete रहती है. If you go 3.5 से नीचे CGPA, then it's going to reduce to 25%. And if you get an even lower GPA than 3, then your scholarship will be affected. In fact, might even finish. So you have to, yet again, as I said, GPA is important. फिर आगे आपका, this is the merit base for A level. Then there's another merit base. If you get a CGPA of 4.0, not एक semester में, but पूरे साल में, you get one course का, which is 32,000 approximately off. So this is another scholarship that you get, and you can maintain it if you get a CGPA of 4.0 while you're enrolled in Lahore School of Economics. Last to here, which is I think is a very good addition, is what I'm also doing, is being a teaching associate at Lahore School of Economics. So there's a minimum GPA requirement to get CA-ship, and that is like 3.5 and above. However, अगर बहुत ज़्यादा बच्चे enrolled हैं, have registered for the TA-ship, they're going to choose those students जिनका top GPA है. So even if you have a 3.6, 3.5, but जिस बच्चे का 3.75 है, they're going to prefer that child for the teaching associate. Now, इसका फायदा ये भी है that this is considered as a job in your CV. So this is a pretty good thing. एक तो आपकी fee भी एक course की हो रही है withdraw. You're also getting a lot of exposures. You get to interact with your instructors, the same instructors that you can work with आगे future में for a PhD, and they help you out. The recommendations that they're going to write if you're applying abroad, they really do help you out. And the things you learn, जो interaction आपकी students के साथ होती है, वो अलग ही मजा है. So this is a lot of, this is something that one should definitely opt for. Then we have requirements, as I have mentioned. Now I'm going to move on to the life at LSE and how you can make the most out of your degree. How you are going to stand out जब आपकी CV जाएगी या आपने LSE में बहुत बच्चे हैं. But how are you going to stand out? This is something that many students, some tips that I'm going to give you guys, please hold on to it if you come into LSE. Know your updates. Know what's going on around. Know कि क्या हो रहा है university में. So many times I know so many talented, capable children who were not updated because they're introverts, yeah, they don't like talking, yeah, they don't like saying within the social circle. So they miss out on such important notifications that they miss out on big opportunities. So first and foremost,
know your updates. Go into every office, go into external relations office, financial assistance office, and stay updated. अक्सर programs होते हैं जिनकी deadline within a week होती है और आपको इतना late पता लगता है that you don't have time to gather your documents because documents काफी ज़्यादा होते हैं. So know कि आपकी क्या आ रहा है, क्या नहीं आ रहा. दूसरा that is going to help in this is networking, your social circle. I'm sorry, but now is the time to be an extrovert. Now is the time to broaden your social horizon and start talking. I was fortunate enough to know a lot of seniors who were studying in Lahore School of Economics, some were in 4th year, some were in 3rd year. So this was something that was very beneficial for me because they told me a lot of things जो मुझे खुद भी नहीं पता थी. इतनी छोटी छोटी details. I remember it was my first week in LSE and I was the youngest person to have gotten into a society, and I was talking to someone from 3rd year and he mentioned कि मैं Turkey गया था. And that's how I started, because मेरा हमेशा से, even before I got into LSE, I wanted to go abroad because I wanted to get that exposure. This is something that you need to drill in your mind कि मैंने सिर्फ पढ़ना नहीं है, I want to get exposure. आपकी personality में that golden touch is only going to get if you have that exposure. No matter how many books you're going to read, no matter how many internships you do, the exposure is very important. वो भी बाहर का. So when I talk about when I went to LSE and in the first week, I was very cautious कि क्या है ऐसे programs, how am I supposed to get into? And the other thing was कि my parents always told me कि if you want to do something abroad, you have to get it yourself and you have to get it on a scholarship, prove it. So I wanted to find something like that. Programs तो बहुत हैं which I would encourage. ISAC का program है, I would encourage, go for it. If you can, definitely. Then there are other programs in LSE जो आपको McGill University लेके जाती है, आपको Harvard MUN लेके जाती है, go for it. If you can, definitely. But I was looking for something that is on a 100% scholarship, that is long term, that is going to get on my CV. And then I was looking for it. And then in a society, a guy told me that he went and he told me that the CGPA requirement is around 3.95 to 4. Now, this is my first week and I'm honestly doubting myself कि मेरा 3.7 भी कैसे आएगा. And so I started working on it with that aim in mind that I want to go abroad. I want to get this scholarship. So no, अब वो networking मुझे ना पता होती, मुझे senior से ना पता लगता, so I would have ignored, and वो motivation ना होती to get that CGPA. And I got my CGPA, which was a 4 in the first year, and now still maintaining it because I have that in my mind कि 4 होगा so I'll get into Turkey, वरना नहीं. Because uski cutoff is 3.95 at that time. Right now, it may even reduce to 3.85, 3.75. So don't get demotivated, still apply. So this is what he told me, there is a program and I started working on it and consistently worked on it. So know your social circle, know the networking, get updated. And then there's another program, and this is 100% scholarship, by the way, for 4 months. In Istanbul, honestly, the exposure you're going to get and the experience and the people you meet, this is completely different. This is what I'm telling is for people who are in LSE, make the most out of it. There are other programs also that are fully funded. National University of Singapore का एक summer program है that they take you out. If you have, इसमें GPA is not that important. What is important is your entrepreneurial आपकी qualities क्या है. If you have a good business idea, if you have that skill in you. Honestly, when I started applying for it and I saw so many students around me कि वो क्या क्या कर रहे हैं, I wanted to do something for myself. I wanted to start my own business too because I want myself to be highlighted. आप ये अपने mind में रखो कि how am I going to stand out? सबके पास डिग्री है, GPA भी सबका अच्छा होगा. What is that one thing in your personality that is making you stand out among everybody else? So find that, grab that, nurture it, motivate yourself, and make the most. No matter where you are, where you got, even if you think I got somewhere where I didn't want to be, don't get demotivated. अब आप इधर आ गए हो, so make the most out of it. And if anybody else needs all the questions regarding LSE, because there's a lot, and I have a small time frame to talk about, what I wanted to focus on was to make the most out of whatever place you are. So I'm going to give it back to Ramsha. And if you have any questions, you can always, hit it right over there. Thank you. Thank you so much, Mariam. बहुत अच्छी तरह आपने explain किया है सब कुछ.
और जो डिफरेंट एक चीज थी वो ये थी कि हाँ कैसे स्टैंड आउट करना है अपनी यूनिवर्सिटी में, एंड यू एक्सप्लेन एंड डिलीवर्ड इन अ वेरी अमेजिंग वे. थैंक यू सो मच. नाउ ओवर टू आवर IBA candidates. हमारे पास स्पीकर्स हैं मिसम एंड हफ्सा. मिसम, कैन यू जस्ट कंटिन्यू विद IBA? Yeah, for sure. Thank you, Ramsha. सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि I'll be talking about my personal experience that how I got into IBA, और मतलब पूरा वो जो हुआ था वो सब क्या था. तो सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा कि जब भी हम लोग ये सारी यूनिवर्सिटीज़ के नाम सुनते हैं, लम्स, IBA, JIK, NUST, डाउ, तो इन सब यूनिवर्सिटीज़ के नाम सुनते हैं तो एक पर्सपेक्टिव बना होता है स्टूडेंट माइंड में, मतलब सबके नहीं बट यूजुअली ये पर्सपेक्टिव बना होता है कि मेरा एडमिशन कैसे होगा, मतलब मैं तो केपेबल ही नहीं हूँ कि मेरा यहाँ पर एडमिशन हो. तो सबसे पहले तो उस पर्सपेक्टिव को जो है वो हटाना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि हर जो दूसरा बच्चा है उसका चांस होता है कि वो किसी भी यूनिवर्सिटी में जाके एडमिशन ले सकते हैं. एवरी स्टूडेंट हैज़ दैट स्पार्क इन हिम और हर, और प्रोबेबिलिटी सबकी इक्वल होती है. ऑब्वियसली कि चांसेस जो होते हैं वो उनको किस तरह बढ़ाना है, और वो तो बच्चे के ऊपर ही होता है, स्टूडेंट के ऊपर ही होता है कि वो कितना, उसकी डेडिकेशन कितनी है, वो हार्ड वर्क कितना कर रहा है. तो वो तो ऑब्वियसली उसके ऊपर होता है, लेकिन इनिशियली जो चांसेस होते हैं वो इक्वल होते हैं. तो आई बी टॉकिंग अबाउट माई एक्सपीरियंस कि मेरे साथ पूरा जो हुआ था वो क्या हुआ था. तो इट वॉज बैक इन 2018. सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि IBA जो है वो 2 बेसिस पे ही एक्सेप्ट करता है स्टूडेंट्स. पहले तो SAT, जिसके बारे में ऑलरेडी आप लोग बहुत ज़्यादा बता चुके हैं पिछले स्पीकर्स, और दूसरा IBA का अपना टेस्ट होता है जो कि 2 बार होता है, राउंड 1 और राउंड 2 होता है. तो सबसे पहले इट वाज बैक इन 2018 व्हेन आई डिसाइडेड कि यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में एडमिशन लेना है. मेरा हाई स्कूल का सेकंड ईयर उस वक्त स्टार्ट होने वाला था. तो मैंने जो है रिसर्च किया कि किस तरह एडमिशन्स वगैरह प्रोसेस क्या होता है सबका. तो आई गॉट टू नो अबाउट SAT, और फिर मैंने इनरोल कर लिया था अब इन SAT's क्लासेस, और बहुत ही मतलब अच्छा इंस्टीट्यूट है यहाँ पर, ट्यूटर प्लस के नाम से. वहाँ पर मैंने इनरोल कर लिया था फॉर क्लासेस. अब वहाँ पर मेरी जो क्लासेस हुई थी वो स्टार्ट हुई थी जुलाई के एंड में, बट देयर वाज दिस अनफॉर्चुनेट इवेंट जो अगस्त में हुआ था, एंड दैट वाज कि मेरे भाई का एक मेजर एक्सीडेंट हो गया था अगस्त के बीच में. तो और फिर उसकी ट्रीटमेंट वगैरह चली थी, नवंबर तक चली थी. तो इन शॉर्ट के मतलब इतना पूरा टाइम में सब कुछ जो था वो घर में काफ़ी डिस्टर्बेंस और क्योस वगैरह था, रिलेटिव्स का बार बार आना जाना, नर्सेस का आना. तो वो एक जो प्रोसेस पूरा जो चल रहा था उसमें मेरी प्रिपरेशन मुझे साथ साथ करनी थी. अब मेरा जो टेस्ट था वो था अक्टूबर में SAT का. अब उसमें ये था कि मतलब बीच में ऑब्वियसली मैं काफ़ी डिस्टर्ब रहा था इस चीज़ की वजह से भी, और फिर मुझे अपनी कॉलेज की पढ़ाई भी साथ ही करनी थी. तो मतलब जब SAT का मेरा रिजल्ट आया था अक्टूबर के, मतलब उस अक्टूबर के महीने में ही, तो आई गॉट अ 1230. एट दैट टाइम IBA का जो कट ऑफ था फॉर SAT दैट वाज 600 ईच फॉर इंग्लिश एंड मैथ्स एंड अ टोटल ऑफ 1240, और मेरा 1230 आया था, 640 इन मैथ्स एंड 590 इन इंग्लिश. मतलब अगर मैं सिंपल वर्ड्स में इसको बोलूँ तो मेरा ऑलमोस्ट सिर्फ एक MCQ से SAT का रह गया था, इंग्लिश का कट ऑफ. तो मैं बहुत ज़्यादा डिसहार्टन हुआ नहीं था टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि कंसिडरिंग कि जो सिचुएशन घर में थी उस हिसाब से तो मतलब मुझे तो यही लग रहा था कि मेरा अच्छा स्कोर आया है. और SAT दोबारा फिर दिसंबर में हो रहा था. आई थॉट कि मैं अगर मैं वापस दूंगा तो मैं क्लियर कर लूंगा इस बार, लेकिन द थिंग इज कि SAT जो है वो USA बेस्ड टेस्ट है, तो उसकी जो फीस जाती है वो डॉलर्स में ही जाती है, और आए दिन हर दिन पाकिस्तान में यही होता है कि डॉलर्स की जो वैल्यू है वो बढ़ती जाती है. तो उस वजह से फिर मैंने डिसाइड किया कि मुझे SAT वगैरह मतलब आई ड्रॉप द आइडिया, और फिर मैंने बोला कि अभी छोड़ देते हैं इस बात को. उसके बाद फिर जनवरी में जनवरी 2019 आई डिसाइडेड कि IBA के टेस्ट ही देता हूँ मैं. मैंने एक दोस्त से बुक्स बोरो करके मैंने प्रिपेयर किया. मैथ्स का मैंने प्रिपेयर किया, इंग्लिश को मैंने लास्ट डे तक मतलब बिल्कुल भी छुआ नहीं था. और IBA का जैसे टेस्ट आया राउंड 1 का, स्ट्रेट शुरू के सवाल इंग्लिश के पोर्शन में वोकैबुलरी थी. मैंने ऐसे पेज पलट दिए थे सारे, क्योंकि आई न्यू के मुझे नहीं आते. जब उसका रिजल्ट आया था राउंड 1 का, आई वाज नॉट सरप्राइज कि मेरा क्लियर नहीं हुआ, क्योंकि मैंने इंग्लिश के लिए बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं किया था. एज पिछले स्पीकर्स ने कहा था कि मतलब इंग्लिश के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि इंग्लिश फॉर SAT इंग्लिश भी बहुत इंपॉर्टेंट है. फिर आई वाज लाइक मतलब ओके सीन था, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा कुछ सैड फील एट दैट टाइम नहीं हो रहा था. फिर मैंने बोला था, फिर बोर्ड्स वगैरह भी आ रहे थे, तो आई थॉट कि पहले से ही प्रिपरेशन स्टार्ट करनी पड़ेगी फॉर नेक्स्ट राउंड. दिस वाज द लास्ट ऑप्शन फॉर मी कि राउंड 2 में अगर नहीं हुआ तो फिर मैं ड्रॉप कर दूंगा IBA का आइडिया. तो मतलब मैंने अपने पुराने जो इंस्टीट्यूट जहाँ से SAT पढ़ा था वहीं से मैंने उनको रीच किया. मैंने बोला कि आई वांट टू गेट इनरोल्ड इन IBS क्लासेस. उन्होंने मुझे इनरोल कर दिया था. मेरी क्लासेस स्टार्ट हो गई थी
इट वाज अगेन कि मैं इंग्लिश पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा था, बट इस बार मैंने थोड़ी प्रिपरेशन कर ली थी। एंड फॉर श्योर जो पिछले स्पीकर ने कहा है, मैं वही बोलूँगा, इंग्लिश पे वाकई बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ता है, क्योंकि मेरा जो राउंड 2 में स्कोर आया था, आई बेयरली मैनेज टू क्लियर। मेरा मतलब जो कट ऑफ था इंग्लिश का 92 था और मेरा एग्जैक्ट 92 आया था। मैं यही समझता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा लकी था इस मामले में, क्योंकि एक एमसीक्यू से मैं बचा हूँ। मतलब एससीटी में मैं एक एमसीक्यू से फेल हो रहा था, मतलब क्लियर नहीं किया था मैंने कट ऑफ, और इस बार मैं एक एमसीक्यू से बच गया था। तो दैट इज हाउ आई मैनेज टू गेट इनटू, मतलब हाउ आई मैनेज टू क्लियर आईबीएस टेस्ट। उसके बाद फिर जो है बात आती है इंटरव्यूज वगैरह की, कि मतलब आईबीए का जो इंटरव्यूज, क्योंकि उसके बाद मुझे ऑब्वियसली इंटरव्यूज क्लियर करने थे, और अब इस बार आईबीए की डेडलाइंस वगैरह ऑलरेडी खत्म हो चुकी हैं सारी, तो मतलब उसकी सबमिट करने की, तो अब इंटरव्यूज या पर्सनल स्टेटमेंट पे ही वो लोग करेंगे। इंटरव्यूज में वेल टू बी ऑनेस्ट मैं ये बात बोलूंगा कि अगर इसको सिंपल वर्ड्स में, अगर नॉट सिंपल वर्ड्स बट इन जनरली अगर मैं बोलूँ ना, कि ये इस तरह समझें कि इंटरव्यूज में जो कॉन्फिडेंस जो है ना, वो एक की है आपकी, और अगर वो की आपने सही लगा दी ना, तो आपका जो एडमिशन का ताला है वो खुल जाएगा, क्योंकि कॉन्फिडेंस ही मैटर करता है। आप मतलब एज मरियम स्टेटेड कि आप किस तरह बैठे हो, आपके हैंड गेस्टर्स क्या हैं, वो सब नोटिस करेंगे, एक एक चीज नोटिस करेंगे, आपने पहना हुआ क्या है, वो सब चीजें मतलब नोटिस करेंगे। मतलब अगर ऑनलाइन में तो और डिफरेंट होगा थोड़ा, लेकिन जो जो फेस टू फेस इंटरव्यूज होते हैं, तो उसमें वो ये भी बाकायदा चेक करते हैं कि हाउ यू आर एंटरिंग द रूम बाकायदा। तो कॉन्फिडेंस का मैं इस तरह से एग्जांपल दूंगा कि मैं अपना एग्जांपल दूंगा कि मेरे साथ मेरे इंटरव्यू में ये हुआ था कि मेरा इकोनॉमिक्स का इंटरव्यू था, इकोनॉमिक्स वाज माय फर्स्ट चॉइस। तो उन्होंने मुझसे सवाल पूछा था कि प्लीज टेल अस कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट किस तरह कैलकुलेट करते हैं। अब मुझे पता, मैंने पढ़ा था ये, बट एट दैट वेरी मोमेंट मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रही थी ये बात। तो मैंने उनको स्ट्रेट फॉरवर्डली बोल दिया था कि सर आई एम सॉरी बट आई डोंट नो अबाउट दिस। मतलब इस तरह, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि हर चीज में मना कर देना, बट इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अगर आपको कोई चीज याद नहीं आ रही है, कोई चीज आप अनश्योर हो बोलने में, तो आपके अंदर तक कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर आप उसको एग्जैजरेट करोगे, थोड़ा खींचोगे उस बात को कि सर ये वो, तो फिर उनको समझ आ जाएगा कि ये बंदा जो है या बंदी जो है वो नर्वस है बहुत, और फिर उसमें फिर मतलब वहां पर बहुत ज्यादा मसले हो जाएंगे। अब फॉर मी मेरे अब ये सोचें कि 2 बार मैंने क्लियर नहीं किया था और फिर थर्ड टाइम में वापस अपेयर हो रहा था, तो बीच में एक बंदे के एक मोटिवेशन लेवल होता है कि वो सोचता है कि यार मुझसे नहीं हो पाएगा। एंड आई एम श्योर कि बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे वाइल अगर वो नहीं क्लियर कर पाए कि मुझसे नहीं हो सकता एंड आई एम नॉट केपेबल, मतलब एक मोटिवेशन लेवल होता है वो खत्म हो जाता है। बट इफ यू आस्क मी कि व्हाट केप्ट मी मोटिवेटेड, वेल टू बी ऑनेस्ट इट वाज माय पेरेंट्स। मतलब हमेशा हम लोग, नॉट ओनली माय पेरेंट्स, सबके पेरेंट्स ऐसे ही होते हैं कि वो सैक्रिफाइस करते हैं अपने बच्चों के लिए, एंड मतलब वो दे गिव इट देयर ऑल। मतलब मेरे पेरेंट्स ने भी और बाकी सबके पेरेंट्स भी यही करते हैं कि अपनी हैसियत से बढ़कर देते हैं। फॉर मी मेरे पेरेंट्स ने मुझे कभी मना नहीं किया किसी चीज के लिए भी, मैंने जो भी कुछ मांगा उन्होंने, मतलब वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे, इवन नाउ आईबीए की फीस भी वो अफोर्ड नहीं कर सकते, बट दे आर डूइंग इट फॉर मी। तो बिफोर आईबीएस टेस्ट में यही सोचा था कि अगर वो इतना सब कुछ इतने सालों से मतलब कर रहे हैं और अभी भी वो कर और आगे भी करेंगे, तो वो इतना सब कुछ कर रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा माइल जाके अगर उनको थोड़ी खुशी दे सकता हूँ तो उसमें कोई मसला नहीं है। एंड आई सॉ दैट हैप्पीनेस ऑन माय पेरेंट्स फेस जब मेरा लिस्ट में नाम आया था, तो इट वाज ट्रूली हार्ट वार्मिंग फॉर मी। मतलब दिल को ठंडक मिली थी कि हाँ यार चलो कुछ किया है जिसकी वजह से उनको मतलब खुशी हुई है। तो दैट इज द सोल रीजन कि मतलब मुझे मोटिवेशन मिलती रही, अलॉन्ग विद ऑब्वियसली माय फ्रेंड्स एंड माय टीचर्स एंड ऑल, जो मुझे मोटिवेट करते रहे। तो ये था। और इन दी एंड मैं ये बोलूंगा कि लोग ये भी सोचते हैं कि फाइनेंशियल कंडीशन मेरी स्ट्रांग नहीं है, मैं आईबीए कैसे अफोर्ड करूंगा, और ये कैसे होगा सब कुछ, मैं आईबीए लर्म्स वगैरह ये सब इतने महंगे में फीस कैसे भरूंगा। तो टू बी ऑनेस्ट मेरा भी फाइनेंशियल बैकग्राउंड कोई इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। मतलब यूजुअली ये होता है कि मतलब आप बहुत ज्यादा फीस अफोर्ड नहीं कर सकते। आईबीए की स्कॉलरशिप्स का ये सीन है कि पहले ये होता था कि स्कॉलरशिप्स जो है वो ग्रेड्स और परसेंटेज बेसिस पे मिलती, मतलब आप 90% ले आओ या आपके ग्रेड्स स्ट्रेट ए स्टार्स हैं तो आपको मिल जाएगा, मतलब स्कॉलरशिप्स मिल जाएंगी। बट अब उन्होंने चेंज कर दिया क्राइटेरिया, एंड दैट इज कि नीड बेसिस पे होती है। अब नीड बेसिस क्या होती है? नीड बेसिस ये होता है कि अगर आपको जरूरत है, अगर उनको लगता है कि आपको जरूरत है, वो आपको देंगे, भले आपकी परसेंटेज जो भी, आपके ग्रेड्स जो भी हो, दे डोंट केयर, मतलब वो आपको देंगे इफ यू आर, मतलब आपको जरूरत है। एंड सबसे पहले आपको फाइनेंशियल एड का फॉर्म भरना पड़ता है, आपको उनको आईबीए वालों को प्रूफ्स वगैरह देने पड़ते हैं। प्रूफ्स इन द सेंस कि आपको सैलरी स्लिप्स वगैरह, उसके अलावा लोन्स अगर कोई हैं, बिल्स वगैरह, पानी का, गैस का बिल्स वगैरह आप उनको देंगे, और फिर आईबीए वाले उसको देख के फिर डिसाइड करेंगे आपको जितनी जरूरत है वो उतनी देंगे। एंड ऑब्वियसली फिर आपको यूनिवर्सिटी में रहते हुए एक जीपीए मेंटेन करनी पड़ती है ताकि आपकी जो फाइनेंशियल एड है वो रहे, तो वो तो ऑब्वियसली। लेकिन उसके अलावा आईबीए वाले फुल
मतलब देते हैं फाइनेंशियल एड वगैरह। पहले ये होता था कि स्कॉलरशिप्स पे होता था, वो भी परसेंटेज पे अगर आपका बहुत ज़्यादा है, वरना अब नीड बेसिस पे होता है, जो मेरे हिसाब से एक अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि अब जिनको ज़रूरत है वो अप्लाई करते हैं और उनको मिलती भी है। आई वुड लाइक टू एंड दिस बाय जस्ट सेइंग कि मोटिवेशन नहीं हारनी, कुछ भी हो जाए। मतलब एक पॉइंट होता है कि सैचुरेशन पॉइंट होता है, बंदा बोलता है कि भाई अब नहीं हो सकता, मैं छोड़ रहा हूँ सब कुछ, सही है। और मतलब ये है कि दूसरी बात मैं ये बोलूँगा कि अगर आपने बहुत ज़्यादा चॉइसेस रखी हुई ना, बहुत ज़्यादा, मतलब 5-6 यूनिवर्सिटीज़ की चॉइसेस रखी हुई हैं, तो मतलब फिर आपका और थोड़ा लेवल, इन द सेंस कि मोटिवेशन नहीं, बट एक होता है डिलिजेंस और एक हार्ड वर्किंग का लेवल, वो गिर जाता है। अगर आपको रखनी है ना चॉइसेस की और यूनिवर्सिटी है, तो और ऊपर की रखोगे, इससे अच्छी यूनिवर्सिटीज की चॉइस है। अगर आप हल्की की रखोगे कि यार यहाँ चला जाऊंगा, वहाँ चला जाऊंगा, तो उसमें एक ये मसला होता है कि आप ये सोचते हैं कि यार मेरे पास बैकअप प्लान तो है, मैं वहाँ अप्लाई कर लूंगा। तो मेरे लिए सिर्फ एक ही चॉइस थी IBA, मैंने वहीं अप्लाई किया और मेरा वहीं हुआ। मतलब अगर आप एक चॉइस रखोगे या सिर्फ मैक्सिमम 2 चॉइसेस रखोगे, तो आप उल्टा उस पर और मेहनत करोगे कि यार मुझे मतलब ये 2 यूनिवर्सिटीज हैं, यहीं जाना है मुझे, इसके अलावा मैं कहीं नहीं आ रहा। तो आप एक एक्स्ट्रा एफर्ट पुट करते हो ताकि आपका वहां हो जाए। आई गेस दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आई वुड लाइक टू ओवर टू रमशा। थैंक यू सो मच मिसम। एंड जैसे मिसम ने कहा है कि एम फॉर द टॉप, आपने अपने टॉप तक ही के लिए एम करना है। व्हाट इज देयर कि जो मतलब अल्लाह कैन डू फॉर यू, अगर आपने मेहनत की है, अगर आपकी नीयत ये है कि आपने इसके लिए इधर आपने पहुंचना है, तो व्हाट इज देयर जो आपको रोकेगा? नथिंग। और अगर ठीक है आपके लिए वो चीज ठीक नहीं है, आपको अल्लाह ताला ने नहीं दी, आपको वो चीज नहीं मिली, तो आपने उसके लिए हार के नहीं बैठ जाना। कीप स्ट्रगलिंग, कीप स्ट्रगलिंग। बहुत सारी चीजें ऐसी, जैसे किसी के पास रिसोर्सेज नहीं होती, किसी के पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं होती, किसी के पास वो मतलब वो एनकरेजमेंट नहीं होती, किसी के पास वो विल नहीं होती, लेकिन आपने उस चीज से कभी भी स्टेप बैक नहीं करना। ऑलवेज कीप ऑन स्ट्रगलिंग, स्ट्रगलिंग, स्ट्रगलिंग। एक टाइम ऐसा आएगा कि आप यू इट विल बी ऑल वर्थ इट, ठीक है, इंशाल्लाह। नाउ द लास्ट स्पीकर फॉर टुडे, हफ्सा महमूद, शी इज अ ग्रेजुएट फ्रॉम IBA। हफ्सा, आप क्या ऐड करना चाहेंगी? Assalamu alaikum. सबसे वालेकुम। पहले तो I would like to continue from where Misam has left, that जहाँ तक फोकस की बात है, you should definitely remain focused about different institutes जहाँ पे भी आपको जाना है। आपको अपने ऑप्शंस लेकिन हमेशा ओपन रखने हैं, अपने ऑप्शंस आपको कभी क्लोज नहीं रखने हैं। अगर मैं आपको अपना बताऊं तो I was just in my 8th standard और मैंने डिसाइड कर लिया था कि यार मुझे बायो या मुझे इंजीनियरिंग तो करनी नहीं है। Even though I was a very good grader, I got a very good grade in my biology and chemistry classes, but I just felt कि this was something जो मेरे लिए नहीं बना था। और मैंने 8th स्टैंडर्ड से ये डिसाइड करा था कि यार कॉमर्स इज द फील्ड दैट आई वांट टू परस्यू एंड IBA इज द प्लेस दैट आई वांट टू बी एट। और मैंने उसी तरफ से जो है अपनी अपनी तरफ से भी रिसर्चेस करना शुरू हो गई थी, बिकॉज आई डिडंट रिलाई ऑन अदर पीपल आउट देयर, आई स्टार्टेड डूइंग इट ऑन माय ओन सेल्फ। मैंने IBA की वेबसाइट खोली, उसके बारे में पढ़ना शुरू कर दिया, एंड फॉर माय राउंड 1 आई फेल्ड, आई कुड नॉट क्लियर माय राउंड 1। मैंने जितनी भी कोचिंग करी, आई डिड इट ऑन माय ओन, मैंने खुद पढ़ा और राउंड 2 मैंने क्लियर कर दिया। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, गेटिंग इनटू IBA, आई एम श्योर यहाँ पे अभी जितने भी लोग पीपल आर व्यूइंग दिस लाइव, वो यही सोच रहे होंगे कि यार वो सब तो ठीक है, बट हाउ टू गेट इनटू IBA? क्या कोई सीक्रेट फॉर्मूला है कि हम किसी तरीके से IBA में चले जाएं? When I was applying for IBA, so there were a lot of people and they were coming up to me and telling me कि यार फला फला आप कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर लें, या फला फला जो है इस बंदे से आप पढ़ लें, या इधर से आप पढ़ लें, उधर से आप पढ़ लें, तो आपका जो है IBA में हो जाएगा, या आपका A levels बैकग्राउंड है तो आपके पास ज्यादा चांसेस हैं to get into IBA and stuff like that. And these are all myths. This is not true at all. If I talk about my experience of getting into IBA, so I स्टडीड द एंटायर, मैंने पूरा पेपर खुद अपने हिसाब से, अपनी मेहनत से, अपनी तरीके से, ऑनलाइन रिसोर्सेज एज वेल एज फिजिकल रिसोर्सेज से पढ़ा था। आई डिडंट टेक एनी ट्यूशन एंड आई डोंट बिलीव दैट देयर इज एनी स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट दैट कैन गारंटी यू फॉर गेटिंग एन एडमिशन इन एनी इंस्टीट्यूट। अगर कोई एक चीज है विच कैन गारंटी यू इज दैट आप फोकस रहें, आप जो है मेहनत करें, आप जैसे रमशा ने बोला कि आप हार नहीं मानेंगे, डोंट नीड टू लूज होप। बिकॉज जब मेरा राउंड 1 क्लियर नहीं हुआ था, आई लिटरली लॉस्ट होप एंड आई लिटरली फेल्ट दैट यार अब क्या है, अब तो मेरा नहीं करेगा। एंड आई रिमेम्बर नेक्स्ट डे मेरा जो है मैंने CBM में अप्लाई किया था, मेरा वहाँ हो गया था, और नेक्स्ट डे जो था मेरा CBM की प्री सबमिशन डेडलाइन थी, और उसी दिन मेरा IBA का इंटरव्यू था। एंड आई वाज सो स्कैर्ड एंड आई फेल्ट कि शायद मेरा इंटरव्यू भी क्लियर नहीं होगा। I lost hope to that extent, but then I realized that in times of hardship or in times where you fail, if there's anything that happens is that you just learn more. और मैंने अपनी experiences से सीखा, and I got into IBA without spending a lot of money on any kind of tuition centers or anything of that sort.
moving on. Okay, so now I would like to talk about the kind of degree that you're supposed to choose, because जब हम इंटर या ए लेवल्स हम कुछ भी करके जब हम वहां से निकलते हैं तो हम बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, बिकॉज अचानक से एक हमें धक्का लगा होता है और हम एक ऐसी लाइफ में आ जाते हैं ना हमें कुछ पता नहीं होता कि मुझे आगे करना क्या है। और हम लोगों को बिल्कुल भी वी आर नेवर श्योर कि विच डिग्री वी वांट टू परस्यू। सो इधर देयर इज वन एडवाइस दैट आई वुड ऑलवेज वांट टू गिव इज कि आप उस डिग्री को परस्यू करो, उस डिग्री को परस्यू ना करो जिसमें आपको ये लगता है कि यार यू नो एट द एंड ऑफ द डे मुझे मॉनेटरी रिवॉर्ड या मुझे जॉब अच्छी मिल जाएगी और मुझे पैसे उससे अच्छे मिल जाएंगे उस डिग्री से। आप उस डिग्री को परस्यू करो जिसके लिए आप लिटरली यू आर वेरी पैशनेट अबाउट इट, जिसको आप लिटरली पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि जब आपके पास जब आप पैशनेट होगे ना किसी चीज के बारे में तो यू विल इवेंचुअली अपॉर्चुनिटीज आपके लिए खुद ब खुद ही डेवलप होती जाएंगी। अगर मैं आईबीए की बात करूं तो अभी यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट तरह की डिग्रीज ऑफर हैं। एक तो आपकी बिजनेस फोकस डिग्रीज हैं, जैसे कि बीबीए की हम अगर बात कर लें तो इट्स बिजनेस फोकस डिग्री में आई पर्सनली चोज टू डू बीबीए बिकॉज आई फेल्ट के ये एक बहुत ही वर्सेटाइल डिग्री थी। आई वाज नॉट रियली श्योर उस वक्त कि मुझे अपना स्पेशलाइजेशन किस में करना है, तो मैंने चूज किया कि यार मैं एक ऐसी डिग्री करती हूँ विच विल गिव मी अ पीरियड ऑफ 3 to 2 years जब मैं आराम से सब कुछ पढ़ के आई कैन डिसाइड के कौन सी चीज मुझे ज्यादा इंटरेस्ट करती है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे मैं नहीं चाहती थी कि मैं किसी ऐसी डिग्री में फंस जाऊं जो मुझे पसंद नहीं है। इसी तरीके से आईबीए इज नॉट जस्ट एट आईबीए यू जस्ट डोंट हैव ओनली बीबीए, नहीं आपके पास और भी डिफरेंट डिग्रीज हैं। जैसे आप अकाउंटिंग एंड फाइनेंस कर सकते हो अगर आपको इंटरेस्ट है कि यार मुझे फाइनेंस में बहुत इंटरेस्ट है, मुझे मजा आता है उसमें करना। अगेन योर इंटरेस्ट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन कि आपका किस सब्जेक्ट में मार्क्स अच्छे आ रहे हैं। आपका मार्क्स इज नॉट एन इंडिकेशन ऑफ योर पैशन अबाउट अ सब्जेक्ट। अगर आपको वो चीज पढ़ आप पूरी जिंदगी अगर एक चीज पढ़ सकते हो और अगर आप उसमें करने में आपको मजा आता है, दैट इज व्हाट योर पैशन इज ऑल अबाउट एंड यू शुड डेफिनेटली स्टार्ट एक्सप्लोरिंग इट। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप बायो या इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं, आपको लगता है कि यार मुझे बिजनेस की तरफ तो नहीं जाना, बट यू नो मे बी आई वांट टू गो टुवर्ड्स द कंप्यूटर साइंस वेब डेवलपमेंट, इस तरफ मुझे ज्यादा इंटरेस्ट है, तो यू कैन डू अ कंप्यूटर साइंस डिग्री, कैन ऑप्ट फॉर दैट। सोशल साइंसेस अगर आप ऑप्ट कर सकते हो, अगर आपको लगता है कि यार यू नो आई वांट टू वर्क ऑन डिफरेंट सोशल इश्यूज या मुझे साइकोलॉजी में इंटरेस्ट है या मुझे इस तरह की डिफरेंट डिग्रीज में इंटरेस्ट है, यू कैन कम फॉर दैट। दिस इज अ वेरी वन ऑफ द बेस्ट डिग्रीज एट आईबीए। इसके अलावा आप इको एंड मैथ और इको की तरफ जा सकते हो अगर आपको डेवलपमेंटल इकोनॉमिक्स वगैरह में इंटरेस्ट है और आपको पॉलिटिकल वगैरह में इंटरेस्ट है। बट अगेन व्हाट आई वुड रियली सजेस्ट यू इज कि आप सबसे पहले इन सारी डिग्रीज के बारे में लर्न अबाउट, बी वेरी क्यूरियस एंड लर्न अबाउट दिस डिग्रीज ऑन योर ओन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आप एटलीस्ट खुद क्या करना चाहते हो एंड देन गो फॉरवर्ड एंड परस्यू अ डिग्री। बिकॉज फिर होता ये अक्सर कि लोग डिग्रीज ले लेते हैं कि भाई मुझे ये चीज करनी है एंड देन हाफ वे थ्रू उनको लगता है कि यार ये मेरे लिए नहीं बना and वो कहीं और switch कर लेते हैं, which is always an option, you can always switch, but then again you have actually you know kind of given a half टाइम आप अपना दे चुके होते हो एक डिग्री को, तो कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा आपके लिए ओवरवेलमिंग भी हो जाता है। तो इसलिए इट्स बेटर कि आप हमेशा प्रिपेयर्ड रहो और आपको पता रहे कि आपको क्या किस तरीके से करना है। Moving on to the next slide, now I would like to talk about different kind of financial assistance opportunities that are available at IPA. तो सबसे पहली चीज तो ये कि अगर आप मेरिटोरियस हो, अगर आप हार्ड वर्किंग हो, अगर आपको पता है कि आपको क्या अचीव करना है, आईबीए विल नेवर लेट योर फाइनेंशियल कंडीशन स्टॉप यू फ्रॉम स्टडिंग एट आईबीए। मेरिट रियली रियली काउंट्स। आपके पास यहाँ पे डिफरेंट तरह की फाइनेंशियल असिस्टेंस अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं। जैसे आप नीड बेस्ड स्कॉलरशिप के लिए आप अप्लाई कर सकते हो और उसके लिए आपको मीसम ऑलरेडी बता चुके हैं कि देयर इज अ लॉट ऑफ डॉक्यूमेंट्स दैट यू हैव टू सबमिट एंड एवरीथिंग। लेकिन नीड बेस्ड स्कॉलरशिप इज नॉट द ओनली थिंग जो आप अप्लाई कर सकते हो, इसके अलावा भी बहुत सी चीजें हैं। हमारे पास भी एक प्रोग्राम है विच इज कॉल्ड नेशनल टैलेंट हंट प्रोग्राम। ये एनटीएचपी है जिसमें बकायदा आईबीए जो है स्टूडेंट्स को लेता है और स्टूडेंट्स को ट्रेन करता है फ्रॉम ऑल अक्रॉस पाकिस्तान टू प्रिपेयर फॉर देयर टेस्ट। So it's not just need based, it's also your merit. You have to clear the test and then you get into IBA on a particular और आपको एक particular percentage जो है वो scholarship आपको दी जाती है। इसके अलावा आपके पास ये भी ऑप्शन है कि आपको आईबीए ये भी अलाउ करता है कि आप इंस्टॉलमेंट में भी अपनी जो है सेमेस्टर फी की पेमेंट कर सकते हो। if you are facing any kind of issues when you are in IBA, you can actually use this option as well. इसके अलावा आईबीए आपको लोन्स भी प्रोवाइड करता है एंड वो इंटरेस्ट फ्री लोन्स आपको प्रोवाइड करता है, कर्जे हंसना प्रोवाइड करता है, सो दैट अगर आप पढ़ भी रहे हो और अगर आप लोन्स ले भी रहे हो तो वो लोन्स का जो बर्डन है वो आपकी उसकी जो रीपेमेंट है वो आपके ऊपर बर्डन ना बन जाए बाद में।
इसके अलावा IBA आपको वर्क स्टडी अपॉर्चुनिटीज भी प्रोवाइड करता है, तो आप जो है IBA में भी डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज हैं। आपके पास टीचिंग असिस्टेंट की अपॉर्चुनिटी है, आप किसी भी टीचर का आप टीचिंग असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो, आप रिसर्च असिस्टेंट बन सकते हो। इसके अलावा IBA में भी हैव अ सीडी इंक्यूबेटर, जहाँ पे IBA ही के डिफरेंट स्टार्टअप्स हैं। आप उन स्टार्टअप्स में डिफरेंट जॉब्स अवेलेबल होती हैं एंड मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर पेड। आप उन पेड जॉब्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हो एंड यू कैन fund your fee. I personally know a lot of people at IBA who have actually funded their entire program by their own. तो आप ये भी कर सकते हो। तो अपॉर्चुनिटीज तो बहुत हैं, इट्स जस्ट दैट यू डोंट हैव टू फील कि यार आई हैव अ restraint. Your finance can never be a restraint. You just need to believe in yourself and have faith in yourself. Moving on to the next slide. Okay. So if I talk about personal statements, so basically अगर आप financial assistance के लिए भी apply करते हो ना IBA में, जैसे अगर आप need based के लिए apply कर रहे हो, तो आपको एक personal statement जो है वो आपको लिख कर देना होता है। And most of the time students get really very confused कि यार हम personal statement में क्या लिखें। तो वो जैसे आतर ने बात की कि लास्ट मोमेंट पे वो लोग बैठते हैं personal statement लिखने के लिए, and then सबसे पूछते रहते हैं क्या फॉर्मेट है, क्या फॉर्मेट है, क्या फॉर्मेट है। देयर इज नो फॉर्मेट फॉर अ पर्सनल स्टेटमेंट। अगर मैं पर्सनल स्टेटमेंट की बात करूं तो वो मेरा जाती स्टेटमेंट है, वो मेरे बारे में, वो मेरी स्टोरी है। तो ये पर्सनल स्टेटमेंट आपका किसी और बंदे को अगर स्कॉलरशिप मिल जाती है तो जरूरी नहीं है कि आपका पर्सनल स्टेटमेंट भी उसी के पर्सनल स्टेटमेंट के जैसा होएगा तो ही आपको मिलेगी। ऐसी बात नहीं है। आपके पर्सनल स्टेटमेंट में आपको बताना है कि आप किस तरीके से what are you passionate about, why do you deserve this scholarship, and how can you give back to the community. Because always remember that even if somebody else even if you're getting a scholarship from anybody, somebody is actually investing in you. And when somebody is actually investing in you, take it up as a challenge, be a marketer, and provide them a great return on investment, and make sure कि यार आप अपनी डिग्री को आप वर्थ इट बनाओ और आप अपनी उस स्कॉलरशिप को भी वर्थ इट बनाओ, that you actually deserve what you're getting. Moving on to the next slide. When students come to IBA, mostly a lot of people have a lot of tension कि यार will I be able to fit in, कि मैं IBA में क्या fit भी हो पाऊंगी, because a lot of people have a lot of preconceived notions कि पहले से उनके दिमाग में बहुत सी चीजें बनी होती हैं कि यार अगर मेरा फाइनेंशियल बैकग्राउंड ऐसा है या मेरा इकोनॉमिक बैकग्राउंड ऐसा है या मैं इधर रहता हूँ तो उधर रहता हूँ, तो मैं कैसे फिट होऊंगा IBA में। सबसे पहली चीज तो ये कि you can always fit in. I, being an IBAN, I can actually bet IBA is one of the most diverse universities, and you will find a lot of acceptance within IBA. IBA में पाकिस्तान के हर कोने से हर बच्चा आता है और हर बच्चे को इक्वल ही अपॉर्चुनिटीज IBA में दी जा रही होती हैं, जहाँ पे वो सोसाइटीज रन कर रहा होता है और जहाँ पे वो डिफरेंट काइंड ऑफ चीज़ों के साथ डील कर रहा होता है। किसी भी तरीके से कोई इस तरह की डिस्क्रिपेंसी या कोई डिस्क्रिमिनेशन सॉर्ट ऑफ थिंग नहीं होती है। और जहाँ तक फिट इन की बात है तो आप डेफिनेटली फिट इन कर सकते हो, बट जैसे मीसा ने बात की थी कि यू नीड टू थिंक बिग, सो व्हाई डू यू वांट टू फिट इन, स्टैंड आउट, come to IBA, make your own name, and develop your own brand and have your own identity. इसका मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसे अभी रिसेंटली देयर इज दिस गाय, एंड इसने IBA का एक स्टूडेंट है जिसने चिन्यौट से जो आया है, NTH प्रोग्राम के थ्रू वो आया, उसको पूरी स्कॉलरशिप यहाँ पे मिली अपने मेरिट के बेसिस पे, अपनी नीड की बेसिस पे। एंड उसने अभी रिसेंटली अप्लाई किया हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में, विच इज अमंग द टॉप बिजनेस स्कूल्स इन द वर्ल्ड, एंड ही गॉट एडमिटेड इनटू दैट। और उसमें IBA ने उसको जरूर पॉलिश किया, IBA ने उसको जरूर हेल्प किया, बट वो उसकी अपनी खुद की मेहनत भी थी और उसका अपना खुद का फेथ भी था अपने ऊपर कि he managed to get into one of those business schools। इसका सब everybody literally pray for it। बट अगर वो लड़का जो था, अगर वो ये सोच लेता कि यार मैं IBA कैसे जाऊंगा, यार I can't afford it, या मैं तो नहीं कर पाऊंगा, या मैं तो कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, तो कुछ नहीं होता ना। तो he came to IBA, he fit into it, and he didn't just fit into IBA, he stood out, got an admission into one of the top business schools in the United States, and make a space for him in IBA, make his own identity in IBA. And that's the kind of that's the way how IBA polishes you as a student, no matter from where you belong, no matter from where you are. You will be welcomed at IBA with open arms and will be polished to be great professionals and to be great human beings as well. I think I would like to end my part over here and over it to Ramsha now. थैंक यू सो मच हफ्सा। और सबका मतलब आपने एक तरह से जिसे कंपाइल कर दिया सारा कुछ एक जगह पे। वी आर रियली वेरी ग्रेटफुल टू यू एंड ऑल ऑफ यू। नाउ आई विल आस्क वलीद टू कंटिन्यू विद द क्वेश्चन आंसर सेशन।
जी अस्सलाम वालेकुम रमशा, आवाज आ रही है आपको? जी जी आ रही है। ऑलराइट, अच्छा सबसे पहले तो आई हैव अ क्वेश्चन फॉर मरीम शब्बीर. डज LSE नीड SAT? No, you do not need an SAT. You just need to come up and show up for the entrance test, and then there's going to be an interview. The entrance test, however, is SAT based mostly. So just prepare for the SAT just in case. But you do not need an SAT score for it. ऑलराइट, और उसके अलावा आप लोगों ने सबने काफ़ी अच्छा, यू हैव समड इट अप वेरी वेल. आप लोगों ने सबका एडमिशन क्राइटेरिया बताया. आई वांटेड टू गेट क्लैरिफाइड ऑन वन थिंग. एवरीवेयर यू नीड अ SAT SAT, ठीक है. आई गेव इट फॉर माय MBBS बैक देन 3 years 4 years बैक. तो आई वांटेड टू नो कि आप लोगों में से कोई ये बता दे कि हाउ डू यू गेट टू SAT. आप उसके लिए किन अथॉरिटीज़ के पास जाते हैं, किन ऑर्गेनाइजेशन है, या कौन से इंस्टीट्यूशन हैं जो SAT कंडक्ट करवाते हैं. आई नो इट्स अ बिग प्रोसेस, इसकी बड़ी लॉन्ग एप्लीकेशन होती है. तो how do you actually get to take SAT? Anyone of you can answer who has taken SAT? Nisam? Can you repeat your question? Sorry. Yeah, I was asking कि how do you actually appear for SAT? उसका प्रोसेस क्या है SAT में? उसके हाँ, लेट मी टेल यू कि सबसे पहले SAT जो है वो बेसिकली कॉलेज बोर्ड वाले, एक कॉलेज बोर्ड जो है वो वेबसाइट है, वो लोग करवाते हैं. तो सबसे पहले तो आपको वहाँ जाके रजिस्टर करना होता है. एज फार एज आई रिमेम्बर SAT साल में 4 बार होता है. अक्टूबर में, मतलब जो SAT जनरल होता है, लाइक जिसमें से मैथ्स और वो होती है, इंग्लिश होती है, जो यूजुअली यूनिवर्सिटीज एक्सेप्ट करती हैं. बाकी SAT 2 भी होता है जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स का होता है, जैसे बायो, फिजिक्स वगैरह का होता है, जो कि हाई लेवल का होता है. मतलब वो अगर आप जैसे IBA में अगर आप इकोनॉमिक्स मैथ्स के लिए अप्लाई कर रहे होंगे तो उसमें इकोनॉमिक्स मैथ्स में ऑब्वियसली मेजर मैथ्स है, तो उसके लिए SAT 2 रिक्वायर्ड होता है. खैर एनीवेज, उसके लिए SAT के लिए आपको अप्लाई करने के लिए कॉलेज बोर्ड की वेबसाइट पे अपना अकाउंट बनाना होता है. वहीं पर आप पूरी रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होती है उनकी, और इन दी एंड आपको मतलब सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के बाद, लाइक अपना नाम, सब कुछ, फैमिली मेंबर्स के बारे में बताने के बाद, इन दी एंड वो आपका क्रेडिट कार्ड नंबर जो होता है, उस क्रेडिट कार्ड के थ्रू वो आपकी जो होती है वो पेमेंट होती है. तो ये इस तरह पूरा प्रोसेस होता है, ऑनलाइन होता है पूरा. Okay, all right. अच्छा, the next question is for LUMS. MBA admission procedure in LUMS and the preparation sources. देखिए, LUMS का जो MBA प्रोग्राम है उसके भी ऑलमोस्ट सिमिलर रिक्वायरमेंट्स हैं. और रिक्वायरमेंट्स में ये आते हैं कि आपका सबसे पहले तो बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, ठीक है. और उसमें भी द सेम रूल अप्लाइज कि देयर इज नो कट ऑफ, ठीक है. आपने अपने आप को स्टैंड आउट करना है, ठीक है. एंड यू कैन, मतलब आपने स्टैंड आउट आप किसी भी डायमेंशन में कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल एकेडमिक बैकग्राउंड कंसीडर की जाती है, परफॉर्मेंस इन द एडमिशन टेस्ट होते हैं, एडमिशन टेस्ट GRE हो गया वो. आई डोंट नो, इट इज ऑलमोस्ट लाइक SAT, लेकिन ऑब्वियसली वो जरा ज्यादा डिफिकल्ट होता है. और उसके अलावा वर्क एक्सपीरियंस एक ऐसी चीज है जो बहुत ज़्यादा मैटर करती है. और द स्टैंडर्ड रूल जो हमने सुना है वो यही होता है, 2 years वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए. विदाउट दैट बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपका एडमिशन हो पाएगा. और वैसे भी एक जनरल रूल ये होता है कि आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, लेकिन ये परसेप्शन होती है कि इफ़ यू डायरेक्टली गो टू योर पोस्ट ग्रेड यूनिवर्सिटी आफ्टर अंडरग्रेड, तो इट गिव्स यू अ काइंड ऑफ signal that you weren't able to find a good job, and that's why you started pursuing post-grad degrees. So इसलिए it's preferable कि आप थोड़ा सा job experience लें, और उसमें obviously job experience आपका होगा तो आपके MBA के chances बढ़ जाते हैं. और फिर obviously application forms होंगे जो एक standard तरीका है, और वो जो हमने वेबसाइट अपने लिंक में, अपनी स्लाइड शो में मेंशन की थी, उनमें इस तरह की बहुत स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो सकती है. और तो इसमें एक और चीज़ होती है, स्टैंडर्ड इंटरव्यू, जो स्टैंडर्ड अंडरग्रेड के एडमिशन होते हैं LUMS के, उनमें इंटरव्यूज नहीं होते. तो यहाँ पे आके आपके इंटरव्यूज मोस्ट प्रोबेबली हो सकते हैं. दैट्स नॉट लाइक ऑलवेज वो होंगे, लेकिन देयर इज अ ग्रेट चांस कि वो हो सकते हैं. तो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमने सुनी है, जो डिफरेंट है, वो ये है कि एक तो SAT की जगह GRE आ जाता है, और उसके अलावा आपका वर्क एक्सपीरियंस जो है वो मस्ट है. उसके बगैर बहुत कोई बेयरली कुछ
किसी का चांस हो तो वो आ सकता है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली आपका वर्क एक्सपीरियंस होना लाजमी होता है। All right, Akhil. अच्छा, I just wanted to add to it कि आपने GRE का जिक्र किया, तो we have a question from Laiba server. वो पूछ रही है कि for marketing, for the masters in marketing, उसमें GMAT या GRE कौन सा important है, कौन सा preferable है, और best material for preparation? एक चीज मैं 2 सेकंड पहले ऐड कर दूं, तब मेरा माइक म्यूटेड था मीसम की बात में, जो उन्होंने स्टैट्स के बारे में पूछा था ना। एक बहुत और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हम लोग ना अपने स्पेलिंग्स का ख्याल नहीं रखते, तो जो आपके पासपोर्ट पे आपके एग्जैक्ट स्पेलिंग्स है ना, राइट डाउन टू, अगर आपका डॉट भी है अंदर तो आपके सैट के ऊपर एग्जैक्ट वही स्पेलिंग्स होने चाहिए, क्योंकि जो है ना अ कपल ऑफ पीपल वर सेंट बैक, वो एग्जाम देने गए और उनको उन्होंने गेट से वापस भेजा जबकि सारी पेमेंट्स वगैरह हो चुकी थी, और कभी बार आपके पास टाइम नहीं होता या रिसोर्सेज नहीं होते दोबारा पेयर होने के लिए। और दूसरी चीज जिसके लिए आप लोगों को ध्यान रखना है ना, वो ये है कि कुछ सैट 1 की भी 2 टाइप्स होते हैं, विद एसे और विदाउट एसे। तो आपको अपनी यूनिवर्सिटीज की रिक्वायरमेंट का ख्याल रखना है कि जैसा मुझे लम्स का आइडिया, तो हमारे लिए विद एसे बहुत जरूरी है। अगर आप विदाउट एसे पे कर दें ना, एक ही बात होती है, बस कुछ डॉलर ज्यादा लगते हैं, पर वो आपका सैट पूरा एक्सेप्ट ही नहीं करते। और दूसरा, अगर हम आपकी GMAT और GRE का कर दें, तो विद इन पाकिस्तान देयर इज नॉट मच ऑफ अ डिफरेंशिएटिंग फैक्टर, क्योंकि ऑल द यूनिवर्सिटीज गो फॉर GRE और GMAT। बट अगर आपको अब्रॉड अप्लाई करना है ना, तो फिर ये डिफरेंशिएटिंग फैक्टर आ जाता है। जैसे US जो है ना, वो GRE को करता है, अगर आप यूरोपियन कंट्रीज की तरफ चल रहे हैं तो वो GMAT को करता है। और ये क्वेश्चन आप लोगों ने हमें सेशन से थोड़ी देर पहले मिला था, तो मैंने और आतिर ने ना, हमने कुछ रिसोर्सेज इकट्ठी कर रहे हैं जहाँ पे ना GMAT और GRE की प्रिपरेशन का सारा सामान जो है ना, जो उनकी बुक्स हैं, सेमिनार्स हैं, और आपकी सारी मार्किंग स्कीम्स हैं, और आप किस तरह अपना स्टडी प्लान बना सकते हो, तो वो ऑलरेडी लम्स के एक फोरम पे ड्राइव सारी सेव्ड है। हम उनको एक ड्राइव में कंपाइल करके ना आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे, ताकि आप लोग बाकियों के साथ शेयर करें। All right. Thank you, Manur. You can increase your list to 3 people. I myself went back from the door. SAT की वजह से I had my wrong name on the registration, so I had to walk back. और ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा अगर आप लोग ये जो है वो प्रोवाइड कर देंगे। एक और बात मैं कहना चाहूंगा कि सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, कि सैट की प्रिपरेशन के लिहाज से जो जहाँ तक बात है, मोस्टली लोगों को ये अंदाजा नहीं होता, और वो इसी तरह जिस तरह मीसम ने भी बात की कि वो कोचिंग सेंटर्स में जाते हैं, कोचिंग सेंटर्स कुछ सही तरह पढ़ा नहीं रहे होते, कई पढ़ा रहे होते हैं, और आपका टारगेट है फॉर एग्जांपल 1200 से 1400 पे जाना है, वो आपको ट्रेन कर रहे होंगे 1000 से 1200 पे आने के लिए। तो उस हिसाब से आप कोशिश ये करें, एक बहुत अमेजिंग रिसोर्स अवेलेबल है आपके पास, खान एकेडमी। खान एकेडमी अगर आप दिन में निकालें, अपने बहुत अरसे पहले से अगर शुरू करें हैं तो 2-3 घंटे निकाल लें और उस खान एकेडमी को यूज करना शुरू करें। प्रिंसटन की बुक है, प्रिंसटन को यूज करना शुरू करें। और जहां तक एसे की प्रिपरेशन का ताल्लुक है, एसे की प्रिपरेशन आई वोंट सजेस्ट कि आप उस पर बहुत ज्यादा टाइम लगाएं, लेकिन जब आप ऐसे दे रहे हैं तो उससे, क्योंकि उसका एक स्पेसिफिक पैटर्न है, अगर आपको वो समझ आ जाए तो इट्स इजी, तो आप उसके लिए 2-3 एसेज बस प्रैक्टिस कर लें, तो आई गेस दैट वुड बी सफिशिएंट। और खान एकेडमी को मैं एम्फसाइज करना चाहूंगा कि खान एकेडमी का यूज बहुत ज्यादा करें, क्योंकि उससे आप स्किल वाइज अपनी इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। थैंक यू। आई वुड लाइक टू ऐड टू दैट पॉइंट। आतर सही कह रहा है एकदम, क्योंकि मतलब लोग अक्सर ये सोचते हैं व्हाइल गिविंग एसीटी के मतलब किस तरह करेंगे, मुश्किल होगी प्रिपरेशन। ऐसा कोई सीन नहीं है। एक बुक प्रिंसटन की होती है, एक कॉलेज बोर्ड की अपनी होती है। आप कोई भी एक बुक लें, 2-3 टेस्ट आप अटेम्प्ट करेंगे, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि उनका पैटर्न किस तरह का, क्योंकि सेम पैटर्न होता है, वो एक ही पैटर्न होता है। आप उसको थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, आपको खुद ही आदत हो जाएगी, और वो फिर आपको बिल्कुल हो जाएंगे, प्रिपेयर हो जाएंगे। All right. The next question is for lumps again. It's from Fatima Mariam. She is in HSCC 1, so she is basically in first year, and she's asking whether to apply for lumps this year or next year in March. इस साल के एडमिशंस खत्म हो चुके हैं, इनकी डेडलाइन जनवरी में होती है, तो आप जब भी अप्लाई करना होता है, इनका प्रोसेस बहुत लंबा होता है। आप मार्च में आप लोगों को आपकी कुछ चीजें जमा करानी होती हैं, कुछ आपको मई में करानी होती है, फिर आपको मई में जाके और फिर आपको आगे लेटर्स रिसीव होते हैं। पर जनवरी 28-29 के करीब एडमिशन डेडलाइन होती है, उसके बाद अप्लाई नहीं कर सकते। Alright. Okay, so applying के साथ ही एक और there is one question from Khizar Zahid. He's asking कि आप लोगों की सबकी यूनिवर्सिटीज का LUMS, LSE and IBA, what's the admission deadline, especially for this year?
LSE is actually closing their online applications on 30th, so you only have 2 days, but it's still possible. If you have your documents with you, you can always use a CAM scanner, scan your documents. The best thing is, because of the pandemic, you can always upload it online. We go to our website, Lahore School of Economics. उसमें आपने अपना account बनाना है. You're going to upload it. आपको वो बताएगा if your documents are complete or not. It's a long list, so you should get started on that. And if you still have questions, there's actually a pretty good forum, LSE discussion forum. It's actually a group on Facebook in which all these students who are now registering, they just put in their queries, and all the alumni and the undergraduate students who are currently studying, they can always answer your queries. So that is also a very good source for which if you have any questions, because there are a lot of students over there already asking questions. Okay, anyone from IBA and LUMS? IBA की जो डेडलाइंस हैं वो ऑलरेडी खत्म हो चुकी हैं, मतलब 2 दिन पहले ही 26 जून वाज द लास्ट डेडलाइन. यूजुअली ये होता है कि IBA की जो डेडलाइंस होती हैं 2 राउंड्स होते हैं, राउंड 1 एंड राउंड 2. फॉर BBA और सोशल साइंसेज इनके जो टेस्ट होते हैं उनकी जो डेडलाइन फरवरी में होती है, और जनवरी के एंड में आई गेस वो एंड कर देते हैं, फरवरी में उनका टेस्ट होता है. एंड फॉर राउंड 2 उनके जो टेस्ट होता है वो जुलाई के शुरू में होता है, फर्स्ट वीक में, और डेडलाइंस जो हैं वो जून के एंड में खत्म हो जाती हैं. तो ये हर साल ये प्रोसेस होता है उनका. इस बार ऑब्वियसली टेस्ट नहीं हो रहा, तो इन लोगों ने डेडलाइन खत्म करके अब डायरेक्ट इंटरव्यूज के लिए शॉर्टलिस्ट करेंगे लोग ऑन द बेसिस ऑफ पर्सनल स्टेटमेंट एंड ऑल. LUMS का मेरे ख्याल से हमने थोड़ा बहुत आइडिया दे दिया, फिर हम बता देते हैं. LUMS का हर दफा अंडरग्रेड के लिए की प्रोसीजर होता है. हमारा एक पोर्टल होता है, वो ये लोग ओपन कर दें, क्योंकि इसकी सारी आपको ना इलेक्ट्रॉनिकली जमा करानी होती है, और फिर आपको अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करा के इनको कोरियर करने पड़ते हैं. तो इट ओपन्स अप इन दिसंबर. आपको अपना अकाउंट बनाना पड़ता है, वहाँ पे पूरा प्रोसेस है. जैसा मरियम ने कहा, इस तरह आप लोगों को काफ़ी फेसबुक पे LUMS के ग्रुप भी मिल जाएंगे जहाँ पे आप हेल्प किसी भी अलमनाई वगैरह से ले सकते हो. But they usually tend to close around हमारी dates होती है ना, वैसे 28th 29th जनवरी होती है, like before the start of February. और आपको आपके decisions मार्च से 20th मार्च के बाद से आना स्टार्ट हो जाते हैं, और अगस्त 20 से पहले हमारे फाइनल डिसीजंस, मतलब 20th मार्च से 20th अगस्त के बीच आपको आपके डिसीजंस मिल जाते हैं. All right, thank you, Manu and Nisam and Mariam. अच्छा, मूविंग ऑन, I'd like to specifically know कि हम लोग बहुत इस चीज़ पे बात करते हैं कि हम जब कैरियर अपना स्टार्ट करते हैं तो ऑलवेज लुक फॉरवर्ड कि हमारे पास इन द फ्यूचर कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या होंगी. तो आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम एवरी वन ऑफ यू, आप लोगों के सबके जो डिग्रीज जो आप लोग कोशिश कर रहे हो, कि व्हाट आर द फ्यूचर जॉब मार्केट जो आप लोगों के पास अवेलेबल है. स्टार्टिंग फ्रॉम मरियम, व्हाट विल बी द फ्यूचर अगर हम पाकिस्तान में करते हैं, तो टॉकिंग अबाउट कैरियर अपॉर्चुनिटीज़, पाकिस्तान में मार्केटिंग एंड फाइनेंस में क्या कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं? In marketing and finance is actually a pretty broad horizon. In fact, when I was joining this degree, a lot of people said कि काफी it gives out a very वो impression कि आपने दो completely different, marketing and finance is not a very good combination. जैसे accounting and finance is आपको finance की तरफ जैसे you can go for CFA. However, marketing and finance, the opportunities are endless. You can go for human resource. You can always go ahead for after you do your MPhil. You can go for a PhD. आप टीचिंग की तरफ जा सकते हो. मार्केटिंग की इतनी ज़्यादा पोजीशंस है when it comes to Nestle, when it comes to ICI, because LSE की job market within these multinationals is actually pretty good in Lahore. When it comes to Nestle हो गया, ICI हो गया, Coke हो गया, even tobacco companies. So the opportunities are a lot, but I would always recommend people, if you have that creative edge in you, children who have a marketing and finance, dono double majors. If you have a creative vibe in you, go for marketing related or job, because you should only go for something that you know it is your strength, rather than आप finance में चले जाओ and then you're just miserable and not you giving 100% into it. Finance के लिए फिर then you have a lot of opportunities. You can always start third year में आप अपना CFA start कर लो आप. You can always go for other firms. So opportunities are a lot when it comes to आप लोग just know what is your strength, I guess. All right. Next, I want to know from Hafsa कि BBA में what are the opportunities we have? I think BBA is like very diverse field. तो सबसे पहले तो आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन होता है कि आप
चूज कर सकें कि आपको किस जगह में स्पेशलाइज करना है। अगर मैं करियर ट्रेजेक्टरी की बात करूँ तो अगेन अगर आप बीबीए करते हो, आप मार्केटिंग की तरफ जा सकते हो, आप सप्लाई चेन की तरफ जा सकते हो, आप एचआर की तरफ जा सकते हो, आप सेल्स की तरफ जा सकते हो। जैसे अगर मैं देखूँ तो अगर मैं अभी के जॉब मार्केट में देखूँ तो देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज दैट आर अवेलेबल फॉर सेल्स की प्रोफेशन के लिए आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं। मार्केटिंग का भी अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, बट देन अगेन मार्केटिंग की जो पोजीशंस हैं वो थोड़ी रिस्ट्रिक्टेड होती हैं एंड दी I think because the scope of marketing within our companies over here remains very limited. अगर हम MNCs की बात भी करें तो थोड़ा सा scopes का limited रह जाता है. But then again, you have a lot of opportunities in different digital agencies में आप जा सकते हो marketing के through because I have majored in marketing. As far as HR is concerned, तो HR में भी आपके पास बहुत ज़्यादा opportunity है. आप employer branding की तरफ जा सकते हो, आप corporate communications की तरफ जा सकते हो. So there are a lots of opportunities when it comes to BBA. It's just that आपको पहले डिसाइड करना है कि किस तरफ आप जो है ज़्यादा इंक्लाइंड हो and then there will be a very open market for you once you graduate from as with a BBA degree. All right. Mr. Zaidi, BSc Economics. टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिक्स स्पेसिफिकली, इकोनॉमिक्स जो है वो वेल टू बी ऑनेस्ट बहुत ज़्यादा मतलब लोग करंटली परसू नहीं कर रहे, क्योंकि एक तो थोड़ा बहुत नया भी है और आईबीए में अभी तक इकोनॉमिक्स का बैच निकला नहीं है, बीएस इकोनॉमिक्स का। बीएस इकोनॉमिक्स एंड मैथमेटिक्स काफ़ी सालों से है, बट बीएस इकोनॉमिक्स जो है आईबीए में रिसेंटली 2 साल पहले ही आया है। तो इकोनॉमिक्स बहुत ज़्यादा लोग नहीं करते, एंड व्हेनेवर यूजुअली अगर आप लोगों को बोलें कि इकोनॉमिक्स के बारे में मैं इकोनॉमिक्स पढ़ रहा हूँ, तो वो यही कंसिडर करते हैं कि ड्राई है यार बहुत, और मतलब बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं होगा। लेकिन फॉर मी कि मेरा इंटरेस्ट पहले से ही जनरेटेड था इसमें, तो मैंने इसलिए परसू किया। इकोनॉमिक्स की अगर बात करें तो हम लोग डिफरेंट फील्ड में जा सकते हैं, बैंक्स वगैरह सेक्टर्स में भी जा सकते हैं, मतलब थोड़ा बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी नहीं है, बट क्योंकि ये है कि बहुत ज़्यादा फिर लोग भी नहीं कर रहे, तो एक चांस बना रहता है आपका कि यू आर वन ऑफ दोज के जो इकोनॉमिक्स में मेजर कर रहा है, क्योंकि अभी भी करंटली बहुत ज़्यादा लोग इनरोल नहीं है आईबीए में, बट यस दैट्स द केस के अभी थोड़ी बहुत बढ़ रहा है और आगे और बढ़ेगा। All right. Moving on to BSc Honors, Atir and Mahnur. मैं स्टार्ट कर रही हूँ। हमारा जो मेन है ना, मैं बताना चाहूंगी लम्स की ना एफिलिएशन है जो हमारी बिग 4 एसीएफ कंपनीज है पाकिस्तान में, रोज होगी, फर्गसन होगी, इनसे, और जो बिग 5 मैनेजमेंट कंपनीज है जिसमें मैकेंजी आ गई, बायन एंड को आ गई, तो ना इन लोगों ने इनसे एफिलिएशन की हुई है। और ना इनके अब हमारे विद इन हमारी एनरोलमेंट में ना हमारे सर्टेन क्रेडिटर्स असाइंड होते हैं जिसमें हमने इन कंपनीज के अंदर इंटर्नशिप करनी है और हमारी प्लेसमेंट्स होती है। तो ऑलरेडी जब आपकी सीवी पे बिग 4 या बिग 5 का स्टैम्प आ जाता है ना, तो आपकी अगर जैसे आप जॉब मार्केट में आते हो ना तो वो बहुत स्टैंड आउट करती है। और दूसरा, जब आप इंटर्नशिप करते हो तो द पर्पस ऑफ इंटर्नशिप एक्चुअली इज टू नेटवर्क इन द कंपनी इटसेल्फ, तो यू गेट टू नो पीपल और आपके फर्दर जॉब प्रोस्पेक्ट्स जो होते हैं ना और अच्छे हो जाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें ना तो एंटरप्रेन्योरशिप को लम्स में बहुत ज्यादा किया जाता है, तो इनका अपना इंक्यूबेशन सेंटर है Exactly. के अंदर आप इनका हमारा अपना इंक्यूबेशन सेंटर है जिसकी वजह से जिसके अंदर जो है ना आप लोग अपना आइडिया पिच करते हैं प्रोफेसर्स को, तो वो पूरा बोर्ड होता है। अगर आपको आइडिया पसंद है ना तो उसी मोमेंट आपको फंडिंग मिलती है। अगर इफ दैट्स अ गुड इनफ आइडिया देन इनिशियल फंडिंग कुछ प्रोजेक्ट्स की 5 लाख तक जा चुकी है, तो आपको इनिशियल फंडिंग मिलती है, आपके स्टार्टअप को इंक्यूबेट कर दिया जाता है, और वहाँ पे वो सब जितने भी प्रोफेसर्स होते हैं और जो पाकिस्तान के बेस्ट लोग होते हैं ना जिन्होंने बिजनेस स्टार्टअप किए होते हैं उनको बुला के आपकी मदद कराते हैं इस हिसाब से। और जो तीसरी बात लम्स की, अगर एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करें तो जो पाकिस्तान की 25 बड़ी कंपनीज है ना, इन्होंने इनके साथ इनके एफिलिएशन इस तरह से है कि ये लोग आके इंटरव्यूज करते हैं। जो भी आउटगोइंग बैच होता है हमारे बिजनेस स्कूल में इंटरव्यूज कंडक्ट होते हैं और इन्होंने इतने 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 बच्चे लेने पड़ते हैं। तो इस हिसाब से लम्स का एम्प्लॉयमेंट फैक्टर बहुत अच्छा है। एडिंग ऑन टू मीसन की बात इन इकोनॉमिक्स, तो पिछले दिनों यहाँ पे थिंक टैंक के अब्रॉड से लोग आते हैं और वो इकोनॉमिक्स के बच्चों को स्पेशली बहुत प्रेफर करते हैं, क्योंकि गेम थ्योरी और इस तरह की जो अब चीजें ना अप्लाइड इकोनॉमिक्स और ये चीजें ये आगे जाके एल्गोरिथम इन सब चीजों में बहुत मदद कराते हैं। तो थिंक टैंक भी इकोनॉमिक्स के लिए बहुत अच्छी ऑप्शन है। से I'd like to add आपके पास डेटा एनालिटिक्स में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज होती हैं अगर आपने MJS किया हो, और उसमें अगर आपके पास फील्ड सॉरी Yeah, you can continue. हाँ, तो मैं ये
तो मैं ये कह रहा था कि आपके पास डाटा एनालिटिक्स में बहुत ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। एज यू नो कि बिजनेस इंटेलिजेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस आ रहा है ओवर द टाइम, और डाटा के ऊपर आपको ओवर द टाइम लोग रियलाइज़ कर रहे हैं कि डाटा की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। तो वो पोजीशंस अब ओवर द टाइम बढ़ रही हैं पाकिस्तान के अंदर, बिजनेस इंटेलिजेंस के डिपार्टमेंट्स बन रहे हैं, और उसके अंदर आप कह सकते हैं डाटा एनालिटिक्स की नई कंपनीज इमर्ज कर रही हैं, उनमें आपके पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। उसके अलावा अगर आप बात करें तो मैनेजमेंट कंसल्टेंसीज की बहुत ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। जो MGS के बहुत ज़्यादा क्या कह सकते हैं लाइक फाइक बच्चे या माने में बच्चे होते हैं, दे प्रेफर टू गो टू दीज मैनेजमेंट कंपनीज, और वहाँ पे उनको बहुत ज़्यादा बहुत वेल पेड अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। उसके अलावा आप कह लें जॉब फेयर्स होते हैं यहाँ पे, ठीक है, जहाँ पे आपको पेड इंटर्नशिप्स एंड एज वेल एज जॉब्स भी आपको मिलती हैं, एज महानूर मेंशन्ड कि उसमें बहुत टॉप आपकी कंपनीज आई होती हैं पाकिस्तान की, वहाँ पे आप उनसे इंटरेक्ट कर सकते हैं। और उसके अलावा ये है कि एज इट्स बीन प्रीवियसली मेंशन्ड कि ये एक डाइवर्स डिग्री है, तो यू कैन गो इन एनी डायरेक्शन, फॉर एग्जांपल HR, मार्केटिंग, सेल्स फोर्स, और उसके बाद अगर आप अकाउंटिंग स्पेसिफिक डिग्रीज भी करना चाह रहे हैं, दैट इज इवन आल्सो पॉसिबल। और उसके अलावा आप मैं ये ऐड करना चाह रहा था, हमारे यहाँ मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस होता है, और वो ये है कि वो एक बहुत टेक्निकल, वेल पेड, और उसके लिए सिर्फ MGS नहीं आप कर सकते, हर MGS वाला बच्चा नहीं कर सकता, लेकिन ये है मैनेजमेंट कंसल्टेंट बनने के लिए आपको एक अच्छी क्या कह सकते हैं, आपको जिस तरह मरियम ने कहा, आपको अपने एक्सपीरियंस के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐड करनी पड़ती हैं, फिर जाके आप मैनेजमेंट कंसल्टेंट की पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। मैकेंजी यहाँ पे आती है, मैकेंजी के इंटरव्यूज होते हैं, वो आपको लेते हैं, और वो बहुत वेल पेड अपॉर्चुनिटीज होती हैं, तो उनके लिए भी हमें ट्राई करना चाहिए। जो भी लाम्स में जा रहे हैं उसको उन अपॉर्चुनिटीज को सामने रख के जाना चाहिए, क्योंकि दैट इज अ पॉसिबिलिटी। तो Alright, thank you Atir. I think the job fair जो होता है आप लोगों का, even in I know in IBA भी होता है, LUMS भी होता है, NASH में अच्छी यूनिवर्सिटीज में होता है. This is a very good thing. मुझे पता है मेरे काफी ज्यादा दोस्त हैं मैनेजमेंट साइंसेस से, they are now working in Nestle, GSK and other big companies. और ये इसी तरह जॉब फेयर्स में लास्ट ईयर में आके उन्होंने खुद इंडक्ट किया. But of course you have to be a very good in your with your GPA and your with your extracurricular and your personal statement should be very good. उसके अलावा महरून ने जिक्र किया NIC National Incubation Center, they are of course doing a very good job. They're working. I think they started in Lahore और कराची. अब तो फिलहाल वो कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में भी काम कर रहे हैं, and they're doing a really good job. Just to sum up, we have one last question from Abdul Basit. He's asking कि software engineering के बाद BBA pursue किया जा सकता है, और what would be the advantage? I think Hafsa would be happy to answer this. सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बाद BBA, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग itself MBA undergrad. होगा। Yeah, MBA. He's asking BBA. He's asking if BBA is useful after BSc engineering. Well, I would not suggest कि अगर आप BS engineering कर रहे हो and you're already doing a bachelor degree, so I would not really suggest personally to go for a BBA maybe. But if you are like you also mentioned about the engineering वाला aspect, अगर जैसे अगर आप software engineering कर रहे हो तो you can go later with maybe an MBA degree or something of that sort, because it will add more value to your degree and you can then go and pursue career in maybe supply chain or maybe towards operations and management, project management. But so I think that would be like maybe a better option than compared to doing a BBA after your software engineering degree. Or you could just go for MBA right after your pre-engineering, your BSc engineering. It's actually a very beneficial degree. In fact, people who do their MBA right after their engineering, they actually get most of our jobs. So exactly वो saturated market कोई वाली बात है. But if you do an MBA after engineering, it's actually a pretty good combination. But don't leave it midway. All right, I think that clears Abdul Basit and his question. All right, thank you so much from the question and answer session. I think I covered all of the questions we had. जिन लोगों के और questions हैं, they can always send us to inbox, or if we can, we would try to get into contact them with the speakers as well. हमारे पास कुछ लोगों ने कहा है कि हमें speaker से contact चाहिए, तो we'll let you know. और thank you so much. I think we covered a lot of questions, or from starting the career to getting into a company. I think we covered all of the aspects, and thank you so much from my side. Over to Ramsha.
Thank you, Ramsha. Thank you so much, Waleed. And in the end, of course, I am thanking you all on behalf of Sync कि आप लोगों ने इतना ज़्यादा अपना टाइम निकाला हमारा Sync के लिए, गाइडेंस के लिए, अवेयरनेस देने के लिए हर बच्चे को. एंड वी आर रियली वेरी होपफुल कि इंशाल्लाह जिनको गाइडेंस चाहिए थी, जो इस वक्त स्टक थे, कुछ कंफ्यूजन थी उनकी, वो उनकी क्लियर हो गई हूँ. अगर अभी भी उनको कुछ क्लियर नहीं हुआ या नहीं हुआ तो आवर फेसबुक पेज, आवर ट्विटर पेज, आवर इंस्टाग्राम पेज इज always open for your queries. Okay, we are looking forward to work with each one of you. आप लोग का इतना अच्छा सेशन रहा, और बल्कि आप लोगों ने तो हमें मोटिवेट कर दिया मेडिकल स्टूडेंट्स कि हम लोग अब मैनेजमेंट साइंसेस की तरफ जो है वो चल पड़े. थैंक यू सो मच. And we have upcoming sessions on PLAB and USMLE in July. So sign up on Sync. और साथ हमारे सपोर्ट कीजिएगा. एंड जो लोग हमें who are watching us right now, और आप लोग जो हैं वो भी आप लोग भी जो हैं वो काम करना चाहते हैं, लोगों की मदद करना चाहते हैं, स्टूडेंट्स की मदद करना चाहते हैं, या हमारे हेल्थ के मतलब प्रोस्पेक्ट में काम करना चाहते हैं, सोशल वेलफेयर के प्रोस्पेक्ट में काम करना चाहते हैं, मेडिकल रिसर्च के डायरेक्शन में काम करना चाहते हैं, तो Sync is always here for you. You can join us through any platform, हमारी वेबसाइट के थ्रू. This was all from our side from today's session. Thank you so much. Allah Hafiz. Thank you so much, Ramsha. Thank you so much.